I'm not sure about you, लेकिन सुबह से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना चल रहा है, and that is It's coming home, it's coming home, football's coming home. देखिए मैं तो खुशी खुशी गा रहा हूँ, सिर्फ एक बात का दुख है कि मेरे को कमेंटेटर यश पाठक मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। यश यार तुम भी गाओ। हमने देख लिया था 2020 यूरोज में क्या हो गया था, जो आपने बहुत जल्दी गाया था, तो मैं पहले नहीं गाने वाला। आई होप इंग्लैंड गेट्स इट थ्रू, बट जब वो जरूर जीतेंगे तो मैं गाऊंगा इट्स कमिंग होम, मैं गाऊंगा तब गाऊंगा। Exactly. You know, England fans की आदत यही है, me being one of them, कि we celebrate prematurely. But I think उनका फॉर्म जो रहा है recently in the Euros, last World Cup maybe 2018 में when they were semi-finalists, it makes us cautiously optimistic. So let's just say that we'll be optimistic, but in a cautious manner, क्योंकि इंग्लैंड की हिस्ट्री हम सब जानते हैं. You know, when we most expect them to deliver the goods, that's when they most disappoint us as well. Anyway, हमारे दर्शकों को एक ऑफिशियल वेलकम कर देते हैं ऑन फुटबॉल बॉल ऑन आवर डिजिटल 2 नेटवर्क्स. डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए. आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड द 600K मार्क. वी आर रेसिंग अलोंग एंड we'll be bringing these watch alongs, live coverage throughout the course of the FIFA World Cup. अभी तो देखिए we're just getting started. Picture अभी बाकी है. तो Yash, you were saying something. How excited are you for this game? It's a big gun, England versus Iran, who might not be as big in terms of stature, with due respect to them, but still, I think we're kicking off the tournament or kicking off day 2 of the tournament with a bang, aren't we? देखिए इंग्लैंड जो है ना, वो they are the home of football, okay, and they have failed to go big in the last few years. We have a lot of hopes from this team because they've been performing really well. I think in the 2018 World Cup, I personally believe that they were the most deserving team, in my opinion, who could have come to the finals at least. I don't know about winning because France was a very good side that season, but losing to Croatia was heartbreaking after taking the lead. So I think England are hungrier than ever. They've performed really well in the Euros. And I just was reading or watching a video by the former England president, Greg Dyke, and he told that he had a 10-year plan back then, which said that the 2018 Euros, 2020 Euros, they will win they'll reach the semi-finals of the Euros and they will reach the finals of the World Cup in 2022. So I think they've overshot the Euros for sure. They reached the finals there. And now here is a chance, because when the 10-year plan was made, there was a lot of criticism that looking at England in 2013, it wasn't possible back then. But now when you look at this England squad, you can believe, and you are an England fan, I can see the passion in your eyes when you're talking about the country and the team. We all feel that this England team definitely has has what it takes to go all the way. लेकिन यश, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा. You said कि this England team, you feel definitely has what it takes to go all the way. देखिए, even if we look at previous England sides, like the one in 2006, जो golden generation था, जब आपके Wayne Rooney's and Frank Lampard's and Steven Gerrard's and Paul Scholes of the world were part of the England squad. Sven-Göran Eriksson, I think he was the manager उस समय. देखिए उस समय भी expectations बहुत high थी. On paper that was a star-studded England squad, nearly as good, if not as good, as maybe the Brazil squad, the Argentina squad, the big guns that typically play in the World Cup. तो आपको क्या लगता है इस बार, or in the last maybe 4 years or so, क्या बदला है? In the sense कि आजकल we aren't just like, अच्छा, these players will flatter to deceive, but actually इनमें दम है to reach the semi-finals, to reach the finals, and perhaps maybe lift the World Cup as well. I personally think that the club level football of England has also gone up by the years, because पुराने time पे मैंने जब जितना भी football में 2006 में, I was not that keen on watching football. I was always a cricket lover. Very late I got introduced to football. But yeah, whatever I've heard, whatever I've seen, I've always seen that people like Gerrard, Scholes, Lampard, they were the golden generation. Even David Beckham, you can put him in there. But they failed to win a Euro. They failed to win a World Cup. They didn't do, extraordinarily well when it came to the international tournament. But these were great club legends. But the thing is that this England team has played a lot of matches together. If you look at their squad, they've been playing a lot of friendlies, and because of FIFA as well, they've planned these international friendlies a lot more than that what it used to be. पहले के टाइम पे मैंने इतने फ्रेंडलीज कभी देखे नहीं थे, बहुत ही कम देखता था. तो आई थिंक दैट सिनर्जी, द जेलिंग अलोंग ऑफ द टीम has become much better, and I think the leader is very important. And I mean Gareth Southgate as a manager, his role has been very pivotal, and I don't think he's been given enough credit for what this team has achieved, because no one gave them a chance. Even in 2018, I don't think anyone gave them a chance. They were fortunate to have been drawn in a pool which gave them an opportunity to go ahead, but still the result had to come out. And I think Gareth Southgate is the man who can, change it. He almost did it in the 2020 Euros. So you can always be optimistic, like you said, as an England fan. देखिए Yash, no one gave them a chance in 2018 except me.
I give the the eternal optimist when it comes to England. लेकिन याश, आपने एक बहुत अच्छी बात कही. You talked about the fact that synergy बहुत अच्छी है squad में, and friendlies वो लोग एक साथ खेलते हैं, काफी time spend करते हैं on and off the field, camps होते हैं, training camps at St. James's Park. And I think that's a very important point, क्योंकि मैं काफी interviews देखा हूँ of like some of the previous England players, the Gary Nevilles and the Paul Scholes and the Frank Lampard, some of the names that we mentioned earlier, and they all talked about the fact that क्योंकि club rivalry इतनी intense हुआ करती थी, the players, when they actually came to the England camp, they had their mini groups, they had their cliques. So the Manchester United players only hung out with the Manchester United players. The Liverpool players only hung out with fellow Liverpool players. But अब जो हम लोग camaraderie देख रहे हैं in the squad, अच्छा, the United players and the City players and the Liverpool players and the Arsenal players all gelling together. I think उसकी वजह से हम लोग को समझ में आ रहा है कि 5 उंगलियां मिलके मुट्ठी बनती है, right? 1 और 1 11. So I think that's a very important point that you brought up about how the team's gelling well, as a result of which we're seeing the results on the pitch as well. Also, Anubhav, I'll also mention that I saw Roy Keane. I think he was talking in an interview. It was a Manchester derby. And I think after the derby, the players are hugging each other. They are consoling each other. Whatever. There's a lot of friendly, gestures being passed on here and there. So Roy Keane was just appalled by this. He was like, this is not the football that I saw. This is not the derbies that I used to be a part of. This is all, this is childish. So he was completely appalled by this. So I can completely agree what you are saying, that the rivalry was so fierce back then कि अब जो ये दोस्ताना या यारी जो आ चुकी है, ये इसीलिए आई है क्योंकि इंटरनेशनली इतना साथ टाइम स्पेंड करते हैं. ऑल्सो द फैक्ट दैट फिल फोर्डन, गैलेगर, ऑल दीज यंगस्टर्स, मेसन माउंट, रीस जेम्स, ये सब साथ में, डेक्लन राइस इतना खेल चुके हैं इन द एज ग्रुप फुटबॉल दैट इट हैज रियली हेल्प्ड देम बिकम अ यूनिट. आप देखिए ना इनकी टीम की एवरेज एज, आई थिंक द ओल्डेस्ट प्लेयर इज काइल वॉकर एंड ही इज जस्ट 32. So you can just imagine the youth that this team has and the experience along with this youth, because I think Mason Mount, Harry Kane, all these players have played enough international football or competitive quality of football to have that temperament and have that preparation for the big games. Absolutely. और देखिए हम लोग यही watch along जारी रखेंगे throughout the course of this match as well as the other 2 matches that we have coming up today. England का starting 11 इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं. तो Ben White, who's been in sublime form, he's in the substitutes bench. पहले starting 11 देख लेते हैं. तो Harry Kane, of course, up front, sensational Kane. Raheem Sterling on the left, Mason Mount playing just behind Harry Kane. Then Bukayo Saka from Arsenal starting. Then in the center of midfield, Declan Rice. Recently, Jamie Carragher ने कहा था Declan Rice is worth £100 million, and he's like the modern age Roy Keane. I think that's a supreme compliment, especially coming from Jamie Carragher. Jude Bellingham, he's in the squad as well. I think the only player in the England squad who does not play in the Premier League, I believe, if I'm not mistaken. Kieran Trippier, जिनका अब तक season बहुत अच्छा रहा है with Newcastle United. Of course, he was at Atletico Madrid and now playing at Newcastle soaring high. फिर जॉन स्टोन्स, हैरी मैग्वायर स्टार्टिंग. देखिए मैग्वायर ऑनेस्टली जब इंग्लैंड के लिए खेलते हैं फैबियो कैनावारो बन जाते हैं. यूनाइटेड के लिए सेम फॉर्म रेप्लिकेट नहीं कर पाते एटलीस्ट दिस सीजन, बट ही इज डेफिनेटली अ रॉक एट द बैक फॉर इंग्लैंड. लेफ्ट हैंड साइड हिज यूनाइटेड टीममेट लुक शॉ, एंड देन एवर्टन के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड. यश, based on the starting 11, any surprises, anything that stands out, or is this what you expected? I pretty much expected this. I was in a dilemma whether if I would be Gareth Southgate, whether I should start Phil Foden or should I not start him. But I think this lineup looks perfect. It's a very good lineup. I was a little worried about Harry Maguire because I think he's just played 4 Premier League games, out of which he has started only in 3. He came on as a substitute in the 4th game. So I think he's not got enough Premier League or enough game time when it comes to club level. So he has not been match prepared, but we know the experience that he possesses. We know you just mentioned that he's a Fabio Cannavaro when he plays for England. So you are absolutely bang on with that. And I believe that Harry Maguire, ये वैसा player है जो experience के साथ आता है and he leads the team. Although he's not the captain here, but हमने देखा है उससे, he was leading the team, he was leading United for a while. अभी उसका currently personally form अच्छा नहीं चल रहा है. But when you have good players around you, you've got a good setup, you've got a good manager, and you've got a great team, I think these players will step up. And I think it's a time where he can, get a redemption of sorts and book his place in this team and also make an impact on world football. And I think, Yash, something that makes a big difference is how you feel in a specific environment. क्योंकि Harry Maguire को देख लो, हो सकता है that in the United camp he doesn't feel all that comfortable. Maybe उनकी head space, mind space
इतनी अच्छी नहीं रहती है. But when he's in that England camp, could be because of the trust that Gareth Southgate has had in him throughout, even when he's not been in the best of form. तभी भी विश्वास जताया है. So because of that, I think Harry Maguire might be feeling like a sense of psychological safety. And so he expresses himself on the pitch as opposed to playing conservatively or playing on the back foot, because of which we end up seeing like the best of Harry Maguire in England colours. But we'll talk more about Harry Maguire. We'll talk more about some of the other starting 11. But Yash, why don't you walk us through the Iran starting 11? What do you find noteworthy from this? So what I'm surprised about is Hadsafi playing in the midfield, because whatever little I've watched of him, and this Iran team is a very good side when it comes to playing in Asia and against Asian teams. Against the European teams, they don't have a great record. If I have the record right, they've played 8 games and they've not got a single win in that. They've drawn 2 games, and one of the draws was against the Portugal team in the last World Cup, if I'm not wrong. They just missed out by qualifying for the round of 16 by that much. So I think they're a good defensive unit, but I think Jahan Baksh and Taremi are very, very, very attacking. Up front, Jahan Baksh has a lot of Premier League experience, and Taremi has been playing for he's playing for Feyenoord for a very long time, and I've been seeing him score goals. He scored 13 international goals, has Jahan Baksh. So it's good to see these players get that opportunity. And here Iran have played around 6 World Cups, so they're not newbies here. They cannot be like tamed. Like there's some young kids, and they're a very physical side. So it's going to be a big test for England. But I really think that this 5-3-2 can prove to be a little too defensive for the start of the World Cup. और आपको क्या लगता है याश, of course England odds on favorites to win this encounter against Iran. How important is it for them to get off to a good start? कहते हैं कि आगाज जो होती है, that oftentimes sets the tone for the rest of the tournament. तो कितना जरूरी है कि England gets off to a winning start such that they can actually take that momentum into the rest of the tournament? Absolutely. आप देखिए ना, कितनी भी आप 2012 का यूरो आप देखिए, you watch the 2016 Euros, wherever England has been a part of, they've not got off to the greatest of starts. They've drawn to Slovenia, they've drawn to Italy, they've drawn against the teams that we thought that was a comfortable win, and not against Italy, but the other teams that Iceland as well. So they've been dropping points against the very walkover opponents that we once felt. But again, in the 2018 World Cup and in the 20 Euros as well, we saw them get these early wins. So an early win is very important. The momentum builds when you get a win under the belt, and I think it eases your nerves as well, because jitna pressure Iran pe hai, I don't think utna pressure hai Iran pe, to be very honest, jitna England pe at this point, because they have a lot to prove, and all of them are super young. They've been thrown into the forests, and they've been told to just go to the end of the light. So it's a very difficult task for England. But I genuinely believe that the experience that England has by playing against the best players with the best teams, they have that match temperament and they are ready for this. It's just a matter of time when we'll see the flourish from this England side, चलो, एक अच्छी बात है, मैं देख रहा था अभी एक कॉर्नर मिला इंग्लैंड को. एक अच्छी बात है कि हैरी केन कॉर्नर्स नहीं ले रहे हैं, बिकॉज in previous tournaments we have seen that quite the bizarre decision. तो हैरी केन is not in corners. याश, एक और चीज आपसे पूछनी थी. देखिए, आप अब तक थोड़ा छुपा रुस्तम रहे हैं. You haven't quite been you've been a bit coy about which team you're supporting इस World Cup में. आप किस पर दाव लगा रहे हैं? तो any disclosure? In this particular World Cup, देखिए यार, मेरा कोई ऐसा पर्सनली फेवरेट टीम है ही नहीं. मैंने बहुत ट्राई किया. I've tried my level best to watch games, to be it just comes to, it's a natural calling. It hasn't come to me yet, but I personally feel that Brazil have a good chance. I am actually looking forward to England as well, because I follow the Premier League left, right and center. I've been watching every Premier League match there is. So I've been looking closely at these players. Every 26 player that has been a part of the squad, I have watched everyone, including Jude Bellingham, who plays for Dortmund. But the fun part is that Brazil are having a great side this time around. The top 5, the 3 people who are there, and on top 3, I would say Neymar, Martinelli, Gabriel Jesus, Rafinha, Antony. They've got a great setup there. And I really feel that this could be the time when Neymar has to actually get something internationally. We all know how talented he is and how great of a dribbler he is. But then at the World Cups, I think Brazil have underperformed with the squads that they had. I think this year is a great chance for them to go all the way. Brazil definitely a good side on paper. So that means इस World Cup में वो लोग 7-1 नहीं हारेंगे against Germany. They'll lose 7-3, huh? 7-3, yeah, 8-2, yeah, whatever. United fans, Arsenal. 8-2, United Arsenal. देखिए, जो भी if you're tuned in right now, if you're listening to us, please
कंटिन्यू कमेंटिंग. बताइए हमें कि आपको क्या लगता है इस मैच में किसकी जीत होने वाली है. गिव अस द स्कोर प्रेडिक्शन एज वेल. टेल अस व्हिच टीम यू आर सपोर्टिंग. आप मतलब दो पार्ट क्वेश्चन है. एक पार्ट है ओके व्हाट डज योर माइंड से हु इज गोना विन द वर्ल्ड कप, एंड देन सेकंड पार्ट इज व्हाट डज योर हार्ट से. तो दिल और दिमाग आपका क्या कह रहा है. दे कुड बी ऑन द सेम पेज बट दे माइट नॉट बी ऑन द सेम पेज. यश, प्रीमियर लीग में आप किसको सपोर्ट करते हैं. यू सेड यू फॉलोड लेफ्ट राइट एंड सेंटर. आपकी टीम. I've been following Premier League very closely. Again, I don't support any team. I don't know what to say. It's a very bland and a weird answer. पर मैं किसी टीम को support नहीं कर पाया हूँ. But I genuinely like watching Arsenal and City play because I personally, whenever I play football, I've been playing club football in the division circuit. So we've been told to play out from the back and keep the ball, keep the possession, and just try to make the opponents work hard and not us. So I really like the teams that keep possession. So personally, for me, the way Manchester City play, the slow build-up, the 17 passes in their own half to play out from the back is something that Pep Guardiola always talks about. So that is something that I really look forward to. That's why I watch all these City games, the Arsenal games as well. This season has been phenomenal for Arsenal. So I think these are the two teams that I would love to watch. And when I was young, I really liked Manchester United when I was like very young because that was the only team, Cristiano Ronaldo with that spiky hairdo of his, and he was the hottest man alive at that time. So everyone used to be like, this is the guy I want to be like. So I used to watch Ronaldo, yeah. So that's why. तो इस स्निपेट से, इस कॉन्वर्सेशन से मुझे ये मालूम पड़ा है कि यश इज अ सेमी प्रोफेशनल फुटबॉलर, मे बी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, एंड आई एम honored to be sharing the virtual stage with him. मुझे थोड़ी inferiority complex भी महसूस हो रही है because I haven't kicked a ball throughout my life, but देखिए यश जी talking about playing from the back and what not, ये सब technical terms मेरे सिर के ऊपर से चले जाते हैं. ये जाते तो है, but ये कैसा है कि मुझे भी इतना कुछ आइडिया था नहीं. When I started playing football, I started very late. You will be very surprised. My best friend is an Arsenal fan. So we were watching the last game, QPR versus City and United versus Sunderland. So I think I was watching that game and I know other friends of mine were United fans and they were all cheering Glory Man United when QPR was winning by 2-1. पर end में पता नहीं मेरे friend ने मुझे बोला कि, and my friend although he's an Arsenal fan, but I believe he's more of an anti-United guy because he was completely against United. He wanted City to win. उस दिन जब अग्वेरो ने वो गोल मारा तो I personally felt something that this is what football is, and I was feeling so left out because I didn't have any favorites or anything like that. So I think since then I started keenly watching football and even playing. And since then I think I've started playing some competitive football, but I won't say I'm a professional player. I just play for fun and I just play for my fitness, and it's a great sport to play. यार यश, आपने उस ट्रॉमेटिक दिन की याद दिलाई जब when Man City lifted the title in the last 3 minutes, Aguero, what not, 93rd minute, 20 seconds. यार मेरा PTSD वापस आ गया, post traumatic stress disorder. I'm still suffering from that because of what happened on that day. Anyway, question for you, Yash, but yes, most importantly, question for everyone tuning in. What do you think the score will be at halftime? Score predictions, please हमारे साथ share कीजिए, and we'll go through all the comments that are coming in and try करेंगे कि आपको shout out दे in the event that you get it correct. अभी तो nil है फिलहाल, less than 10 minutes played, but बताइए half time में what do you think the score prediction will be? Yash, I'll put you on the spot. Score prediction आपके हिसाब से at half time. I think it could be 0-0 for the half time because I think England is a side that takes time to settle into the game. I would love to see a goal for England, mind you. बट मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह का इंग्लैंड का फुटबॉल है, ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस है. आई थिंक 0-0 won't be a surprising, or it's a safe bet for me right now because Iran are started out with fire at the back. So to exploit that also you need a lot of patience and all. I think the gaps will be much more open in the second half. I think we'll have to be patient about it. So 0-0 मेरा prediction है for the first half. तो मेरे हिसाब से I think it'll be tight, it'll be cagey शुरू में, लेकिन somewhere between the 35th minute and the 40th minute, England will take the lead and they'll go into the halftime break leading 1-0. Because if that happens, Anubhav, you will see more goals in the second half. Because England are a team that dribbles a lot, they keep the ball a lot, so they are that kind of a team. They are not a team that will hold back or they will just play it to the wingers and let them do the work like probably what an Italy does or some other teams do. They will like to build up, they will like to keep possession. So I think अगर 1-0 हो गया तो ईरान भी बहुत अटैक करने को ट्राई करेगी because obviously who wants to settle for a defeat. So we could see more goals there, yeah. Absolutely. Some of your favorite World Cup memories, Yash. So my favorite World Cup memory, I mentioned yesterday to Nishad as well.
I started watching football in the 2006 World Cup final. Like that was the first international game I must have ever watched. I was supporting Zidane. I didn't know any other player. My mom and my dad knew this French guy Zidane, that he's a maestro and it's his last World Cup, and the performance that he had against Brazil a match before. So everyone was like Zidane, Zidane, Zidane. मैंने देखा तो भाई ने कुछ किया तो नहीं, लेकिन देखे बहुत कुछ किया वो. So yeah, that's my first memory. But my most happiest that I've ever been would be, I think, the 2010 finals, because I was watching Spain very closely. I was watching how they played. I watched Barcelona games. Like I watched just a little bit of it. I didn't know a lot about football back then. But yeah, I definitely watched that World Cup for Spain, and I wanted them to lift it up because I think Spain hadn't won a World Cup before that. And Netherlands also hadn't won, but they had been in the finals for far too long, like a couple of finals, and this was the third one. So everyone was banking on Netherlands winning it, given the experience in the World Cup stage, But I was supporting Spain at that time, and I was glad that I supported Spain. Yeah. I think the special thing about that World Cup final, जो 2010 में हुआ था, yeah. extra time पे, I think injury time पे Iniesta had scored the winner, right? Yeah, 1-0 Spain जीता था. I think the special thing about that World Cup final was the fact that that game, like the overall game, has become a cure for people who suffer from insomnia. It's a boring game. The World Cup as a whole, was great, but I think that game itself was a very cagey affair. And I think towards the end, jab Iniesta ne goal mara and broke the deadlock, we were all like, "Chalo, we can breathe a sigh of relief." There's some pace, some excitement that's been injected into the match. So the 2010 World Cup, I don't have a lot of memories of that World Cup other than the Kenan waving flag and the Waka Waka song. I think that got very famous. That's the only thing that I took from that World Cup other than the win of Spain. But that World Cup was genuinely the transformation point for people of my age. We started watching from that World Cup, and since then I think 2014 was obviously it was in Rio, so obviously Brazil mein ho raha hai to log pagal hai football ke. So you know how it is. और देखिए the favorites इस World Cup के लिए, like काफी favorites है, right? The Argentinas, Brazils, England भी. But what are maybe a couple of teams that you think might end up surprising, like the dark horses, teams that you think might end up punching above their weight इस World Cup में? Dark horses तो मैं नहीं कहूँगा, but Denmark एक team है which I would look forward to. Denmark is a very good side. I followed them even in the Euros. They almost gave England a heart attack. That Damsgaard free kick, if you remember. So they are a very good side. Denmark is definitely one of them. And I thought that Senegal also could be, but then now Sadio Mane is missing. I really don't know how they will, play without him, because he's a very pivotal player in that squad. So मेरे लिए तो सिर्फ अभी Denmark ही है मेरे दिमाग में, जो हमें थोड़ा surprise या shock कर सकती है at the moment. और एक और important question, probably a question that's even more important than the one that I just asked you. आपने Waka Waka गाने के बारे में बात की. So you like the song more, or you like the singer of the song more? Well, you should know that, right? I like the... okay, PK, I'm so sorry. Oh, well, why am I sorry? PK is not playing football anymore. I can say that, yeah. I like Shakira a lot, I like Shakira. She had that... Not to mention the fact that PK and Shakira have been separated as well. Yes, so, yes. Yash, I think you can scoop in. I think you've got a chance. It's a safe space that I can say this. So yeah, I like Shakira, and I think that song actually broke the records, man. That season when that song came out, I don't think there ever has been a song for a World Cup that has blown up as much as that has. The Waka Waka and the other song, the waving flag one, because I think till date people go crazy over that song. We've been misconstrued by the lyrics and everything. Everything has been put in such a wrong way in front of us. The lyrics of the Waka Waka song, but still we sing it however we know. Or I think जितने भी record number views थे, 90% of the contribution to that views came from Yash Pathak. Is that fair? Yeah, I've told all my friends, please play that song in every party. I think that's our jam. I hope Shakira is listening to us. I hope Shakira is tuned into Digital2 Sports. And these last 2 minutes from Yash Pathak has been an ode to Shakira. Shakira, I think it's unfortunate you've parted ways with Gerard Piqué, but Yash might be available. So in the event that Yash confirms that he's available, then Shakira, you can definitely go for it. We won't understand each other's language, but दिल की बात दिल से, यही मैं कहना चाहता हूँ. क्या बात है. No, but I want to ask you now, what do you think that other than England,
you asked me who is my favorite team, because I know you will have a little bias towards England because you've been supporting them for a very long time. But realistically speaking, if England is not to qualify, or if there is another team that can put some brakes on this qualification of England or can win the World Cup according to you, other than England, which team would you bank on? मैं obvious names नहीं लेना चाहूंगा अभी. So I won't mention an Argentina or a Brazil or a France, because I think it would be a very cliched answer or a very boring answer. And so I won't pick a name that's too surprising, but at the same time, maybe not odds-on favorites to win the World Cup. I feel Portugal has a chance. I feel Ronaldo is on a mission. अभी जो recently जो fiasco हुआ है Manchester United के साथ, उसके बाद I just feel he's doubly motivated to prove the fact that he might be 37, but he still has the legs, he still has the class, he still has the quality to be a top player. And he's got a point to prove as well, not least because in all probability, he's going to be leaving Manchester United. And so he wants clubs to be suitors for him, to be interested in a Ronaldo. He still believes that he can play until the age of 40. I don't know अगर आप Piers Morgan का interview देखे कि नहीं, but he said कि I see myself playing until 40. If a Zlatan Ibrahimovic can play until 41, Ronaldo is as fit, if not fitter, than an Ibrahimovic. तो Ronaldo को offer मिला था, or at least that's what he claims. It was a 350 million pound offer for 2 years to play in Saudi Arabia. But for him, it's not about the money. He says it's about playing at the highest level, at the competitive level, still competing for the Champions Leagues. And so I feel Ronaldo has a point to prove, because of which, I don't know, I think uska morale jo hai might just lift Portugal, get them close to winning the World Cup. Most likely, because Portugal ki is saal jo aap team dekhenge, they have got one of the best teams that they've ever had in the last, I don't know how many years. Even in 2002 or 2004, they've played World Cups, they've done everything right, but they didn't have this good a side, I would say. Because Bernardo Silva, we know that Pep Guardiola has all the faith in him. He says that this is the guy I want to put all my money on. Pep Guardiola has said it for Bernardo. You've got João Cancelo, who is technically a forward. He's one of the best fullbacks that I've seen in a very long time. When it comes to his attacking abilities, I think he's very, very good. He's right up there. So I think Cancelo is good. You've got other players as well. Bruno Fernandes, we know how good he is. You've got Ruben Diaz. You've got a very good setup at the back. So you don't have to worry about all these things. But then that's what it is about. You have got Cristiano Ronaldo ahead. And I think Ronaldo के लिए जैसे आपने कहा कि all the clubs will be waiting for him. They will be all eyes on him. But मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि somewhere deep down ना अगर अर्जेंटीना और पोर्चुगल का फाइनल हो गया, ये तो ऐसा लोगों ने बहुत वो बोलते ना कि वो रैंडम मैचेस करके कर दिया था कि पोर्चुगल और इसका फाइनल होगा अर्जेंटीना का. बट अगर वैसा हो गया तो सोचो क्या हुआ. हम यहाँ बात कर रहे होंगे अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल. वी आर इन द फाइनल्स ऑफ द कतार वर्ल्ड कप एंड ये मैच होगी तो पता नहीं क्या होगा यार. मैं तो बहुत बिजी रहूंगा, मैच देखने में बिजी रहूंगा मैं तो. अरे it's so याश यार, it's so funny कि आप ये मेंशन कर रहे हो, because पियर्स मॉर्गन ने उसी इंटरव्यू में कहा था, अच्छा hypothetically speaking, Cristiano, what if it's a Portugal versus Argentina final? It's 2-2 going into stoppage time. Messi scored 2, Ronaldo scored 2, and then Ronaldo scores a third in injury time to win Portugal the World Cup against Argentina. And then, so how are you going to react? And then Cristiano says, life will be complete. My football career will be complete. I'll happily retire after that. I'll happily retire. I would not want to play more, because that would be the zenith or the pinnacle of achievement in sport. Uske baad it's only downhill, so why continue when you've already hit the peak? You cannot go higher than that, because yaar usne wo aisi team ke sath Euros, he won the Euros with, I won't say the best Portugal side. It was a very average team in that season. Young players like Renato Sanchez and even Eder. I heard a couple of stories. I had a friend who used to work in Portugal, who had a friend who used to work in Portugal, and he was a coach as well, football coach. So he used to tell us that Eder was not even, taken in the club matches. In the local club matches, maybe usko wo log reserves mein rakhte the, usse wo log substitute mein rakhte the. They didn't give him a chance to play, and then he worked his way up, and finally got a chance to play for Portugal. And देखो उसने क्या impact किया है. Like आज अगर हम पोर्चुगल की कोई भी इंटरनेशनल ट्रॉफी की बात करते हैं, तो यूसेबियो के बाद अगर कोई ऐसा प्लेयर याद आता है कोई, तो एडर आता है, क्योंकि उसने विनर मारा है भाई. इसको तो कोई भूल नहीं सकता ऐसे. So I think Eder has, the legacy is very important. Some people just come, एक गोल मारियो गोड्से ने मारा है, ठीक है, उसके बाद आज तक हमें वही याद है. It haunts us forever. Iniesta was a legend, तो बात अलग हो जाती है. उसने बहुत अचीव किया Iniesta ने otherwise also.
बट बाकी जितने भी प्लेयर्स ने विनर्स मारे हैं, they've been like, it has been like, कौन था ये प्लेयर, लेकिन नाम मुझे याद है बड़ा. Exactly. You know, had it not been for that goal, एडर कोई पहचानता नहीं, तो इतिहास के पन्नों में उसने अपनी जगह परमानेंट कर लिया. हम लोग टीम्स के बारे में काफी बात की. वी टॉक्ड अबाउट फेवरेट्स, वी टॉक्ड अबाउट डार्क हॉर्सेस. आपके पर्सनली फ्रॉम अ पर्सनल स्टैंड पॉइंट, नाउ यू डोंट नेसेसरली हैव टू जस्टिफाई क्यों आपको ये प्लेयर पसंद है, लेकिन पर्सनली आपके सम ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स, दे डोंट नेसेसरली हैव टू बी प्लेयर्स who are banging in the goals right now. I don't know, you could maybe have a man crush on them, could be any reason, but your favorite players who are featuring in the World Cup. So in this World Cup, definitely has to be Cristiano Ronaldo. That has to be right up there, because I've loved his work ethic. I've loved his hard work that he's put in. And when you play sports, you cannot have any complacency. I believe that fitness is the key. And given what age he's in, the motivation and drive that he has, I mean, I think Cristiano Ronaldo is one of the best in the world. तो वो है. I really loved Kun Aguero, man. वो ये उसका वो जो हो गया ना, उसके बाद से मैं बहुत disappoint हो गया हूँ. मैं बहुत बड़ा Aguero fan था. I told you, तो गोल उसने जो मारा था 2014 में, तब से 2012 में, तब से मैं उसे follow करता आ रहा था. If he would have been a part of this, I would be a sure shot Argentina fan. Like, I would not even look left and right. We would have like a healthy debate over football, but no, not anymore. But I think in the other teams, I really like, this guy is good. What do you? His name is क्या बोलते हैं? इधर मैंने लिखा है उसका नाम. ये अपना हैरी भाई. मुझे हैरी केन इतना अच्छा लगता है. Harry Kane. Because I'll tell you why. Because Harry Kane has not played so much international football when it comes to the World Cups and all. I think एक ही World Cup खेला है वो. If I'm not wrong, he's played one World Cup. He won the Golden Boot there, and I think Harry Kane has this knack of being a poacher. Like he can create, he can poach, he can do everything that any striker can do. So I think Harry Kane is a complete striker. So I think for England, he's going to be very important. And I think these two players I really look forward to in this World Cup. Harry Kane, I definitely agree. Has this knack of scoring goals. Isn't the most agile player. Yeah. He doesn't run too fast. Isn't the most agile player. And he doesn't look too athletic. Of course, वो height है, but at the same time, when it comes to sprinting like a gazelle, वो नहीं कर पाते. But at the same time, he's such a clever player, such an intelligent player, finding positions for himself, knowing when to demonstrate like a burst of pace. Absolutely. As opposed to running like a headless chicken. So Harry Kane, very intelligent player. Someone else that I really like watching is a Jack Grealish. Granted कि जब से he moved from Aston Villa to Man City, we've seen glimpses of Jack Grealish's brilliance. This season has definitely been a lot more consistent compared to last season was. ये game start नहीं कर रहे हैं, but I feel Jack Grealish is someone I like a lot because of his flair and flamboyance. Right. So for some reason, he reminds me of like a David Beckham. Whenever I watch him, he's like gliding on the pitch with balletic grace. बहुत ही elegance, नजाकत के साथ, grace के साथ वो खेलते हैं. And that's something I really like about, or that's something that draws me to a Jack Grealish. But you were saying something, Yash. I was just saying that there was a stat there of Harry Kane. आप Harry Kane की जो बात कर रहे थे, वो आप देखिए उसने कितने मैचेस में कितने गोल मारे. He's already scored over 50 goals internationally. 51 goals है उसके. और not just that, आप जैसे आप बात कर रहे थे about him not just being a poacher, but also like he creates goals. He's good in the air. He's good on the ball. He's good with his feet. So I think he's a complete striker. Look at that. He's given 14 assists in 6 games. He's got the Golden Boot last season in the World Cup as well. 75 matches, 51 goals. It's a very good record. Incredible. Yeah, it is incredible. So I feel that, and he's leading the team very well. I believe that this England team actually looks like they are goal-oriented. They look, I mean, I don't know. Nothing against the legends who played for England earlier. But this team, I feel that if there ever had to be a match between those two teams, although the players individually would have been much better back then, but this team has got something in them. They've got that, X factor, I believe, with Harry Kane up top and the substitutes as well. आप देखिए ना, Mason Mount is one of the best in dead ball specialist है वो. आपने James Ward-Prowse को बाहर रखा, आपने Ivan Toney को select नहीं किया है. So you've left out some big names for these players to make a mark. And आप imagine करिए इतने बड़े player जो perform कर रहे हैं in domestic or whatever the leagues, English Premier League, उनको आपने बाहर रखा जिन्होंने 10-10 goal already मार दिए हैं. Because there is such healthy competition here. To replace Harry Kane, you've got a Callum Wilson. Look at his numbers for Newcastle. आप राइट बैक्स देखो, मैं कल ही निशात को बोल रहा था, आई थिंक तन्मय को बोल रहा था कि लोगों के सिर पे बाल नहीं होते जितने, उतने गैरेथ साउथगेट के पास राइट बैक 6 से 7 राइट बैक लेके बैठा है. उसमें भी रीस जेम्स बेचारा इंजर हो गया. सो लुक एट द होलसेल एंड अबंडेंस ऑफ टैलेंट.
and all of them are bloody big players, man. So you have to be very very mindful of the 11 that you go forward with. जैसे आपने अभी देखा, ये भी हम देख रहे थे, हमने जैक ग्रिलिश की बात की. जैक ग्रिलिश जब से मैन सिटी में आया है, लोगों ने उससे बहुत कर्स किया है, बहुत ज्यादा उसे नीचा दिखाया है कि ये तो परफॉर्म नहीं कर रहा है. बट आई थिंक दैट द पोजीशन दैट ही प्लेज, ही डज हिज बिट राइट. मैंने हमेशा देखा, ही हैज द सेकंड असिस्ट टू अ गोल. He'll never be the one who gives the final pass, but वो एक ऐसी चीज कर लेता है, he dribbles through, he does something or the other. But that guy is actually special, and I feel he is. People are saying that वो 100 million worth नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. But guess what? He's got a champion's title on his sleeve, and not many others have. और अगर Harry Maguire is worth 80 million, and this is me saying this as a United fan, then I think Jack Grealish is definitely worth 100 million. Although it's not an apples to apples comparison. लेकिन आपने कहा यश कि you feel कि ये generation of England players जो है, वो प्रीवियस जनरेशन या गोल्डन जनरेशन को मे बी कड़ी टक्कर तो डेफिनेटली दे सकते हैं, बट मे बी दे कैन वन अप देम एज वेल. आई थिंक कि डेविड बेकहम बिलोंगिंग टू दैट गोल्डन जनरेशन जो अभी स्टेडियम में है कतार में, ये मैच देख रहे हैं, वो थोड़े से नाराज होंगे आपके साथ. थोड़ी सी नाराजगी सहन कर लो डेविड भाई, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे. मतलब देखो ना, आप खुद ही देखिए, आप डेविड बेकहम, these players were like one man armies, all of them. I'm not saying but football is a team game. आपने देखा है कि आपकी जो गोल्डन जनरेशन है, उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि बाकी टीम्स कुछ ज्यादा ही अच्छे थे एंड इंग्लैंड बहुत ज्यादा पीछे थे. इंग्लैंड के इंडिविजुअल प्लेयर्स वर I think the best in the world. Of course, Rio Ferdinand, John Terry, you had got Robinson in goal who used to play for Tottenham back then. तो आपकी स्क्वाड तो फिक्स थी, आपकी टीम तो बहुत अच्छी थी. You had Wayne Bridgwick, आपकी टीम पूरी अच्छी थी उस टाइम पे. You had got Wayne Rooney आगे, you have all the best players at that time. आपने चारों के नाम लिए, जो डेविड बेकहम, स्कोल्स, लैम्पार्ड और जेरार्ड की बात की. इनके होने के बावजूद अगर आप compete नहीं कर पाते हो, you're not the contenders for a World Cup. It's a little disheartening as a football lover, not just an England fan, कि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद. तो ऐसा नहीं था कि जब ब्राजील की टीम में 11 के 11 रति महारथी थे, उनके भी प्लेयर में हमने देखा है 5 ही थे उनके टॉप प्लेयर्स या 6 ही थे. बट देन अगेन यही होता था when there is a history, when there is a culture, winning culture जब एक टीम में आ जाता है, एक सिनर्जी आ जाती है, जो मैंने वर्ड यूज किया पहले, when जब एक जेल अलॉन्ग हो जाती है टीम, तो आई थिंक उस टीम का रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अलग हो जाता है. इवन इन क्रिकेट आप देखिए, जैसे इंडिया 2007 में जब वर्ल्ड कप जीती है, जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया क्रिकेट में जीती थी, हमारी टीम बेस्ट नहीं थी, हमसे बेटर टीम्स थे. ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम ने सेमीफाइनल में जिनको हराया, उनमें उनकी बेस्ट पॉसिबल 11 थे उस टाइम पे. बट देन वही है, जो जेल अलॉन्ग होते हैं, जो सिनर्जी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक समटाइम्स यूथ ओवर एक्सपीरियंस डज मैटर. समटाइम्स वो एक यंगस्टर्स के अंदर का जो जज्बा और जुनून होता है ना, वो एक्सपीरियंस को थोड़ा खा जाता है, मुझे लगता है. और आई थिंक इस इंग्लैंड टीम की यही खास बात है, अनुभव और ऊर्जा का मेल है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ बोथ द एक्सपीरियंस एज वेल एज द यूथ. और यूथ प्लेयर्स जो होते हैं काफी फियरलेस भी होते हैं, जो आपने कहा, वो जज्बा होता है, वो जुनून होता है, और वो डेफिनेटली उनके खेल में दिखता है. इफ यू कुड एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इफ यू कुड ब्रिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड्स गोल्डन जनरेशन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड, व्हिच 3 प्लेयर्स वुड यू पिक? That difficult सवाल है यार. You're asking me on the spot. सोचिए, take your time. You can think out loud also. No, I would go straight up for it. 3 midfielders, greatest of all times: Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes. I think ये तीनों अगर आ जाए इस इंग्लैंड टीम में, उनके प्राइम वाले हैं, अभी वाले नहीं बाबा, अभी नहीं. अभी आराम करो आप लोग. But I'm just saying कि उस टाइम की जो उनका फॉर्म था, and that golden generation की जो 3 midfielders थे, they were just out of the world. And if they were to play in this England side, and if they had this kind of a synergy, I would be surprised if they wouldn't have won, this World Cup, any other match, because I think midfield is where the battle is won. That is the most dirty space, because I have played in the midfield, in 11 side में खेलता हूँ, जब midfield में जब भी मैं खेला हूँ, तो it is very difficult. तो अगर आप देखेंगे तो midfield जो position है यहाँ पे, डेक्लन राइस और जूड बेलिंगहम खेल रहे हैं इन लोग में, so the position that they are playing is one of the most important places. And the substitutes as well, they've got abundant talent here. You've got Maddison, who can come on in for Mason Mount. You've got Ben White, who can replace the defense as well. Connor Cody, surprising pick here. Marcus Rashford, my goodness, I look at this England squad and I'm like, किस को खिला सकते हैं हम? So इसी बात पे we have Pallab Da. Pallab Da, welcome to the show. Good evening. Yeah, great guys, Anubhav and Yash. Yeah, I was listening to your बहुत ही अच्छा आप डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं, एंड इट इज ग्रेट. या और देखिए, जो अभी
इंग्लैंड के लिए जो पहला मैच हो रहा है, तो ये काफी उनके लिए इम्पोर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि यूरो फाइनल्स आपको शायद याद है, वेम्बली और सारे इंग्लैंड एंड ऑल द इंग्लिश पीपल लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने एकदम वो कैंपेन चालू हुआ था, ब्रिंग इट होम, आपको याद होगा शायद। और वेम्बली पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, बाहर और भी ज्यादा आदमी थे, एंड आई वाज डूइंग कमेंट्री फॉर दैट फाइनल, और लोग शॉ के गोल से आगे भी गए। एंड देन what a great turnaround by this Italians, आपको याद होगा। और then came the godsend Donnarumma and who won it on the penalty। तो इसमें क्या है, अभी ये इंग्लिश टीम जो है ना, आप देखो यश, is going through a lot of transformation, क्योंकि the coaches, you see the number of coaches, हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन गैरेथ साउथगेट को कोई the English pundits और पुराने खिलाड़ी जो है, और they've never accepted him, उनको माना ही नहीं कि वो क्या है। और आप शायद जानते होंगे, कैंपेन्स रन किए, हैशटैग्स हुए कि वेस्ट कोट कोच एंड व्हाटएवर, लेकिन वो जो फाइनल तक ले गए, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यूरो की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि द घोस्ट ऑफ दैट 1966 66 का एक ही वर्ल्ड कप है, वो भी वेम्बली में उन्होंने जीता था। सो दैट लिव्स ऑन। और एक चीज याद करो, अभी वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में जितने साले वर्ल्ड कपर्स सारे 32 देशों के लिए जो खेल रहे हैं ना, ऑफ दैट 173 प्लेयर्स प्लेइंग इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, आप ये मान लो। सो I mean, the best possible thing that could happen, the EPL is the strongest league after maybe NBA के बाद में, और अभी हमारे IPL जो है ना, तो it's got such a brand value। तो यही चीज देखो। And then next comes is Germany and then Spain। और उसमें भी काफी अंतर है, काफी फर्क है। तो all the best players you get in the English Premier League। तो जिस कंट्री के लीग इतने रिच है, उनको आप सोचो कि पिछले 50 साल एंड ऑनवर्ड्स कोई ट्रॉफी नहीं आया। 1966 टू 2022, यार काफी लंबा रास्ता इस जनरेशन। या सो आई मीन इट्स रियली ओवरड्यू। बहुत ही उनको कोशिश होगा कि जस्ट टू गेट इट। बट अगेन लेट मी टेल यू, लास्ट जो पिछले 5 वर्ल्ड कप हुए, इसमें एक ही शायद दक्षिणी अमेरिका की देश जीते हैं, दैट वाज इन अगेन एन एशियन कंट्री, ओनली टाइम इट्स व्हाट हेल्ड, जापान और साउथ कोरिया जॉइंटली होस्ट किए थे, एंड दैट वाज अगेन द 3 आवर्स ब्राजील, एंड दे वन इट। रोनाल्डो, यानी कि बड़े रोनाल्डो, रिवाल्डो एंड रोनाल्डिनो। सो उसका मैजिक चला था, राइट। उसके बाद में यू हैव सीन 4 यूरोपियन विनर्स, एक के बाद एक, देखो आप सारे वो जीतते गए। सो अगेन पीपल सेइंग इट्स the overdue for the Latin Americans to win a cup। वो ब्राजील हो, शायद अर्जेंटीना हो, यूरुग्वे को आजकल बहुत बात नहीं होती है, लेकिन अगेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कंटेंडर्स एज वेल, क्योंकि आपको फ्रांस करंट चैंपियन है, जर्मनी वुड बी ऑलवेज थ्रो देयर गॉन्टलेट, एंड मैंने बराबर जिसके बारे में बहुत ही आई रूटेड फॉर देम इज बेल्जियम। इनके गोल्डन जनरेशन है, एंड इट विल बी देयर लास्ट वर्ल्ड कप। पीपल टॉकिंग अबाउट कि मेसी भाई CR7 ये दोनों की लास्ट वर्ल्ड कप हो सकती है। नॉट पीपल नॉट talking about Kevin De Bruyne, not talking about Thibaut Courtois, not talking about Romelu Lukaku. Again, he's out for the first 2 matches, Lukaku, for the injury. So ये सारे काफी टॉकिंग पॉइंट्स है। और इंग्लैंड के लिए आज का जो ओपनिंग मैच है उसका ग्रुप का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको अभी अल थुमाना स्टेडियम से उनको पूरा 3 पॉइंट लेने का है, क्योंकि द अदर टीम्स इन द ग्रुप आर नॉट केक बॉक्स, ये आप मान लो। राइट, क्योंकि आप यूएसए को देखो, आप वेल्स को देखो, इनमें भी सारे प्लेयर्स हैं जो बड़ा फुटबॉल खेल चुके हैं। अपने वेल्स की बात करेंगे हम अगर, तो फिर गैरेथ बेल उनमें बहुत अच्छे प्लेयर है, जो हमने देखा है, इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स ऑफ द जनरेशन। पर इंग्लैंड की बात करते हो, आपने इंग्लैंड का पॉइंट निकाला, मैं अनुभव से भी ये बात डिस्कस कर रहा था कि इनके जो फुटबॉल प्रेसिडेंट थे इन 2013, he had made a point, his name was ग्रेग डाइक,
आई थिंक उनकी एक वीडियो पे भी रिसेंटली काफी वायरल हुई है, वेरी मेड अ 10-year प्लान एंड दैट वाज highly criticized at that point because 2013 में no one believed that England could actually go ahead of the group stage or probably reach the semi-finals of a World Cup. उन्होंने ये कहा था कि हम यूरोस 2020 के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और 22 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेंगे, हम अंडर 17 और अंडर 21 चैंपियनशिप में भी अच्छा करेंगे इन द नेक्स्ट 10 years. They won the under 17 वर्ल्ड कप. ये दोनों हुआ, अंडर 17 उन्होंने कोलकाता में फाइनल जीता, अंडर 20 they also won it, but again the Euro they call it hand of God. क्वीन तो चले गए डिपार्ट करके, शायद उसी दुख में होगी शायद, एंड शी वाज वन ऑफ द अगेन ग्रेट स्पॉन्सर्स ऑफ स्पोर्ट. अभी प्रिंस चार्ल्स जब वो किंग हुए हैं तो होपफुली ही शुड आल्सो सपोर्ट द स्पोर्ट. और आपने देखे होंगे कि इंग्लैंड अभी क्रिकेट में इतना अच्छा किया, सो इट्स ग्रेट. तो ऐसा ही होते रहेगा एंड थिंग्स शुड हैपन बिकॉज जैसे सारे जगह में होते है, स्पेन में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, इंग्लैंड के भी काफी अच्छे एकेडमीज है और इसके बीच में कुछ हुआ है. As we speak, sir, there has been 1-0. England has scored the goal. मैं वही आपके जस्ट मैंने अपने स्क्रीन पर देखा है कि इंग्लैंड ने अपना फर्स्ट गोल मार दिया है. So what do you think, Pallab da, the first goal has been scored by England? Do you think that will settle their nerves, given that they were the team that were playing against the underdogs? I would say Iran in this fixture, but the result is very important in the first game. So what do you have to say about this? लॉकर रूम जाने के 10 मिनट पहले जूड बेलिंगहम एक क्रॉस को मीट किया, बहुत अच्छा हेडर था वो. ईरान जो कोशिश करेगा बराबर वही उनको स्ट्रेटजी है आज. एंड कार्लोस क्विरोस को आप जानते होंगे कि इतने सच अ ग्रेट टेक्नीशियन, वो प्रेशर अब्सॉर्ब करेंगे. आप रबर देखे होंगे, स्पॉन्ज देखे होंगे, वो पानी हम उठाने के लिए कभी कभी उसको यूज करते हैं, तो दे वुड जस्ट टेक ऑन द प्रेशर ऑफ इंग्लैंड. दे वर टेकिंग इट. लेकिन अभी ये एक गोल आ गया, अच्छा मूव है. इंग्लैंड पर प्रेसिंग, दे हैविंग कितना बॉल पोजीशन वो बहुत रखता है जैसा स्पेन, उस तरह के वो खेलेंगे शायद. उसका स्ट्रेटेजी ऐसा ही होगा. 72 to 80% ऑफ पोजीशन दे वर कीपिंग. ईरान ने बहुत ही सोक किया, लेकिन ये एक मूव हुआ. बट अगेन द स्कोरर इज नॉट हैरी केन, it's Jude Bellingham. It's a first goal for him. It's his first World Cup start. It's a very first thing for him, and he's the only player in this England squad जो इंग्लिश लीग में नहीं खेलते हैं, जो जर्मन लीग में बुंडेसलीगा में डॉर्टमंड के लिए खेलते हैं. तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है. बट अगर हम ईरान की बात करें पल्लव दा, हमने इंग्लैंड की अगर हम बात कर ली है, अभी ईरान की बात करते हुए उनमें एक प्लेयर है टैरेमी करके, जो उनके फॉरवर्ड है, जिनकी मैंने बहुत तारीफ सुनी. यहाँ पे पास कुछ स्टैट्स पड़े हैं. उनके 60 गेम्स में 28 इंटरनेशनल गोल्स है. He also won the UEFA goal of the season by the fans vote, which he scored against Liverpool. He is also nominated for the Puskas Award. So आप देख सकते हैं कि he's been named the Iranian footballer of the year twice back to back in 16-17. तो उनके जो बोलते हैं ना credentials जो है as an individual, they are fantastic. But when you play for a team which is always the underdog, in a group such as this, Iran is the team that has always been told that ये तो fourth ही आने वाले हैं. तो ऐसे टाइम पे मेंटालिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है एज एन अंडरडॉग. हम भी इंडियन फैंस है फुटबॉल के, हम किसी भी टीम से खेलते हैं तो हम हमेशा सेकंड माने जाते हैं, व्हिच इज वेरी सैड फॉर अस, बट इट इज द रियलिटी ऑफ हाउ फुटबॉल वर्क्स. तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आपका मेरे को ओपिनियन लेना है पल्लव दा इस बारे में. मैं इसके पहले थोड़ा सा बता दूं. आप यंग टैलेंट्स के बारे में बोल रहे थे, अंडर 19 के बारे में बोल रहे थे, इंग्लिश अंडर 17 के बारे में बोल रहे थे, जिसमें से अभी फिल फॉर्डन जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ग्रेलिश सारे उभर के आए हैं. दिस जूड बेलिंगहम इज अ वेरी यंग टैलेंट. उनका उम्र 19 साल का है. हिज फादर इज अ सर्जन, हिज फादर्स नेम इज मार्क. और उन्होंने भी शायद चाहा था कि his boy should be going to some sort of a job, वो सेटल हो जाए. लेकिन ये he is a very young talent. और वो डॉर्टमंड के फर्स्ट 11 में भी चांस उसको मिल गया. So this midfielder is a blessed, is a blessing in disguise for this English side, मैं कह दूं आपको. So again, this should be a great, उनके लिए काफी हौसला उनको बढ़ेगा. He would go ahead और जिंदगी में वो शायद उभर के आएंगे. You were talking about, मैंने सुना था आपको ये 2014 फाइनल वाला गोल के बारे में बात कर रहे थे. You were talking about that Mario Götze, that goal, and some people say is a one match wonder. उसका थोड़ा सा बैड लक है कि थोड़ा सा उसके बाद में इंजरी और काफी सारे बीमारियों में फंस गए.
लेकिन ही वाज कॉल्ड अ जर्मन मेसी, आप मान लो। तो अभी अभी ऐसा है, होप जूड बेलिंगम इज ऑन द राइट ट्रैक, वो सही से आए, उभर के आए, और he becomes a good strength for England. Yes, you're right, absolutely right about it. आप देखिए ना, इस स्क्वाड में जो आपके पास हैरी मैग्वायर है, आपके पास जब सारे ऐसे बड़े नाम है, मेसन माउंट इज अ बिग नेम, फिल फोर्डन इज अ बिग नेम, राहीम स्टर्लिंग इज अ बिग नेम, ये सारे बड़े नामों के बीच में ये जूड बेलिंगम कहीं ना कहीं छुप जाता है। लेकिन जब ये गोल कर रहा है और जब ये परफॉर्म कर रहा है, तो आई थिंक आगे जाकर इस टूर्नामेंट में एक तो पहले तो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होने वाला है उसका, बिकॉज ही इज जस्ट 19। I think at the age of 19, if you have made a debut and scored on a debut in a World Cup, you have actually proven a point in front of the world that youth is what is the future. And I think for England, his performance is very important. Pallabda. You were talking about आपने हैरी केन के बारे में काफी बात किया. Yes, he's a very sort of a poachers. He can score poachers goal. He's a sort of a fox in the box. और Yes. again जो उनकी सक्सेस मिली है besides the big clubs in the EPL, आप जानते होंगे, in that he played a very very big role. And whatever, मैंने एक चीज बता दूं, उनको अभी है उम्र 29, यानी कि 29, तो उनको शायद डेफिनेटली एक वर्ल्ड कप तो और भी मिलेगा. और अभी वो 6 मैचेस खेले हैं, आज नंबर 7 मैच वो खेल रहे हैं और 6 गोल हो गए. आपने गोल के बारे में भी बात कर रहे थे. एंड अगेन ही इज वन ऑफ द द स्ट्रेंथ्स. और आप एक सवाल और भी पूछे थे आप अनुभव को, उन्होंने कुछ बताया कि पुराने जनरेशन को किसको आप चाहेंगे करंट टीम में. मैं थोड़ा सा जैसे पुराने जमाने के जेलर तो नहीं हूँ, पुराने जमाने के कमेंटेटर तो हैं, तो शायद बहुत सारे को देख चुके हैं. I would, if you send select a all-time great team, I think Gordon Banks should be coming in anytime. Bobby Moore, the English captain who only time lifted the World Cup, उनको आना चाहिए, of course. And because of the sheer brilliance, मैं गोल स्कोरिंग एबिलिटी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मिडफील्ड डोमिनेशन और विंग से जाके कट करके एंड द सेट पीस सिचुएशंस, दोस फ्री किक्स, आई वुड ऑलवेज हैव डेविड बेकहैम इन फ्रंट ऑफ वेन रूनी. डिस्पाइट उनको भी काफी एबिलिटीज था और गोल स्कोरिंग आप देखे होंगे रूनी के, he scored so many goals, one of the top English goal scorers. और उनको काफी टैलेंट भी, मैं सोचो कि वेस्ट गया, अब सोचो कि पॉल गैस्कॉइन, he started in such a fashion, and people say that he sort of overspent himself, और शायद फुटबॉल के बाहर में भी बहुत चीजों में वो फंस गए थे. आई थिंक पल्लव दा उनका सिर्फ हेयर कट फेमस हुआ है आज के टाइम में, और बाकी आई थिंक उनकी गेम किसी को याद नहीं है, क्योंकि ही वाज अ वेरी बिग प्लेयर. यहाँ पे एक स्टैट आते हुए हमारे सामने, इट्स अ क्विक फैक्ट. पल्लव दा, इफ यू कैन सी दिस, जूड बेलिंगम 19 years 145 days is the second youngest English player at a World Cup. It's a very big youngest thing. English player to score in the World Cup. Yes, I think after Michael Owen he must be the second. Yeah, could be. Yes, we'll just check the stats anyway. And yes, that's what I was mentioning. मैं यही कह रहा था. और मान लो कि इसके बीच में अल तुमामा में the floodgates are opening. Maybe England have got a second goal. They have. Oh, that's amazing. England. Who is that second goal scorer? I will just try and find out. And अभी जो है ईरान के लिए ना, अभी this this the whole thing will open on. This is a Bukayo Saka, one of the one of the greatest challenges we saw in the Euro Cup. वो भी Euro Cup में वो उभर के आए थे, and great, he was brought as a substitute, लेकिन वो burst of speed, उनकी shooting ability, he can move the ball in the air, it's great. Yes, तो अभी तो सोचो कि फर्स्ट हाफ खत्म होने में couple of minutes है, इंजरी टाइम भी ऐड होंगे, तो अभी आई थिंक इंग्लैंड इज ऑन द राइट कोर्स. मैंने सोचा था कि कार्लोस क्वेरेस थोड़ा सा वो बिल्कुल पैकिंग कर देंगे, सर्डिन पैक डिफेंस जैसा होता है, बैक फोर, ऐसे ही बैक फोर वो चालू किए थे. और इंग्लैंड sort of packed the midfield. उनको इनिशियल जो फॉर्मेशन हमको देखा टैक्टिकली, इट वाज अ 4-5-1, यानी कि 5 मिडफील्डर्स को लेके वो स्टार्ट किए हैं. एंड सो दैट इज अ वे they have transforming the game थोड़ा सा. और ये is always going to be very sort of fluid formation, जैसा है गेम के डिमांड के ऊपर ना, आप फॉर्मेशन चेंज करते जाओ. sometime you bring back your the wingers to support your wing backs,
तो Yes. अभी ये these are things are all the happening, you know, in the world football. So not only, you know, those tactics of Italians like packing up their defense and catenaccio, not that really, or not even, like most of the teams do, you know, they play with a three back and Italian system जैसे थे Cannavaro and Maldini के, you know, वक्त पे वही जमाने में. So now things are always, you know, becoming so very flexible. आप change करते रह गए, and could be England got their third goal. Is it Raheem Sterling? So I told you the floodgates Will यश open. खोल गया, अभी ओपन हो गया. 3 गोल अप बिफोर द लेमन ब्रेक. आप मध्यांतर में जाओगे और 3 गोल हो गया, तो इट विल बी डिफिकल्ट इवन फॉर अ कोच लाइक कार्लोस क्वेरेज. उनको अभी कुछ जाके बताना होगा, क्योंकि ईरान इज अ वेरी वेरी ग्रेट फाइटिंग साइड. एशियन टीम में ईरान को एक अच्छा अहम जगह है. They have won the Asian Cups, and they were a very strong team, and 6 World Cup है. Yeah. और ये हाफ टाइम पे इंग्लैंड 3-0 पे आगे जाएगी, तो क्या ये मेंटालिटी और मोरल की तो पूरी धज्जियां उड़ गई ईरान की इधर देखते हुए. और एक और बात है पल्लव दा, मैंने नोटिस किया लास्ट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड स्कोर 12 गोल्स, उसमें से 9 वर ऑफ सेट पीसेस. तो इंग्लैंड आर नॉट जस्ट गुड इन ओपन प्ले, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पूरी ईरानियन साइड को, तो वो सिर्फ ओपन प्ले में अच्छे नहीं है, वो सेट पीसेस पे भी बहुत अच्छे है. अगेंस्ट पैनामा आई थिंक दे स्कोर्ड 6 ऑड गोल्स, जिसमें आई थिंक सेट पीस के ही 3-4 गोल थे. क्रोएशिया के सामने फ्री किक भी कारेन ट्रिपियर ने सेट पीस पे ही मारी थी. तो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो बोलते हैं ना कि जो आपके पास एबिलिटी है टू जस्ट चेंज गियर्स, जस्ट नॉट जस्ट बी अ वन डायमेंशनल टीम जो डेड बॉल स्पेशलिस्ट है, जो या फिर सिर्फ बोलते हैं ना एक तरह का फुटबॉल खेलते हैं. इंग्लैंड इज लाइक यू सेड अ पोजेशन बेस्ड टीम. एक्स्ट्रा टाइम में मैच चल रहा है, तो अभी आई थिंक ईरान वुड जस्ट लाइक टू सी दिस हाफ ऑफ बाय 3-0. एक और गोल खा लिया तो आई थिंक वो यहीं से दे पुट 1 foot आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. But Palabda, is there any comeback happening? Any chance for Iran? I don't think. But just because of your experience, you've seen matches turn. You've seen the teams come back from 3 goals. भैया ये यश ये बनेगा नामुमकिन तो है, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बनेगा कि नहीं ये भी पता नहीं है. क्योंकि दिस इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इंग्लैंड जब लीड करते हैं ना, तो दे वुड आल्सो ब्रिंग देयर शटर्स डाउन. दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस, उनको डिफेंडर्स है. और जैसे मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग ज्यादातर खिलाड़ी वहीं पे खेलते हैं, तो उनको ये एक्सपीरियंस है कि हाउ टू अगेन मेक अ सॉर्ट ऑफ आयरन कर्टन जो है एकदम एक वो ब्लॉक कर देती है, और पैसेजेस जो है, पासेस जो है, इनकी रास्ता वो ब्लॉक कर देते हैं. सो दैट इज द रीजन दे कैन कीप ऑन. बट अगेन दिस इज द सेकंड स्टिंट फॉर कार्लोस क्वेरेज. मुझे लगता नहीं है कि ये अच्छा शुरुआत हुआ, बिकॉज ही वाज विद द ईरान टीम 2011 से 19 तक. वो काफी काम किए हैं विद दैट टीम. एंड दिस द सेकंड स्टिंग जो है इज नॉट वेरी गुड स्टार्ट. मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा. अगर अभी आपने जो क्वेश्चन, आपने जो सवाल पूछा कि ये कमबैक कर सकते हैं, अगर करेगा तो दिस विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप. एब्सोल्युटली, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कही है, क्योंकि ईरान ऐसी टीम है जो इंग्लैंड के सामने तो वैसे ही दे डोंट स्टैंड अ चांस व्हेन इट कम्स टू स्टैट्स इटसेल्फ, क्योंकि दिस इज द 9th गेम दैट दे आर गोइंग इन अगेंस्ट द यूरोपियन साइड. दे हैव नॉट वन अ सिंगल गेम. उनकी लास्ट मैच थी पोर्चुगल के सामने, आई थिंक वो ड्रॉ हुई थी 1-1 वेयर दे फेल्ड टू क्वालीफाई इन द लास्ट वर्ल्ड कप. तो यहाँ पर स्टैट्स तो डेफिनेटली बैक नहीं कर रहे, बट करंट सिनेरियो भी उनके कुछ फेवर में जा तो नहीं रहा है. 3-0 डाउन इन द फर्स्ट हाफ, वेयर रहीम स्टर्लिंग हैज आल्सो रजिस्टर्ड अ गोल. सो आई थिंक अनुभव अपने कमरे में बैठकर बड़ा खुश होगा अभी देखते हुए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंग्लैंड फैन है पल्लव दा. अनुभव तो इंग्लैंड के फैन है, तो पागलपंती है उसका इंग्लैंड के. और काफी सारे आदमी अभी जो है इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं. पीपल आर सपोर्टिंग द इंग्लिश द प्रीमियर लीग क्लब्स एज वेल. आप सोचो कि डिफरेंट टाउन्स में अभी मैन यू के सपोर्टर्स की ब्लॉक है, अभी चेल्सी के है, अभी लिवरपूल के है, मैन सिटी के है. तो अभी इंडिया में शायद इंग्लिश फुटबॉल के लिए काफी हमारे दिलचस्पी है, और ये बढ़ेगा और जितना दिन जाएगा ना, बिकॉज यू कैन वॉच ऑल द गेम्स लाइव. आप सब देख रहे हो, एंड यू रीड अबाउट द प्लेयर्स, आप सुन रहे हो, एंड दे हैव डन ग्रेट मार्केटिंग, दिस इंग्लिश प्रीमियर लीग वाले. ये इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट. इनका मार्केट काफी बड़ा है. सो
this is bound to happen. The youngsters, the young people who love football now love the maybe a Chelsea or a Manchester United or a Liverpool. इनकी fan हो जाते हैं. Arsenal, again, Gunners not doing well, but this season, yeah, they are coming back. तो पहला this is something that I have noticed कि जो भी टीम आप डोमेस्टिकली सपोर्ट करते हो, आप उस टीम को सपोर्ट करते हो जो थोड़ी सक्सेस देखती है. जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो 2004-5 में फुटबॉल देख रहे थे, उन्हें बहुत सारे आर्सेनल फैंस भी है जो आज तक मुझसे डिस्कस करते हैं फुटबॉल के बारे में. जो थोड़ा बाद में देखने लगे, जो मेरे एज के लोग हैं, जो अराउंड अभी 25 आसपास है, वो सारे यूनाइटेड फैंस हैं, क्योंकि उस टाइम पे गोल्डन पीरियड ऑफ यूनाइटेड, गैरी नेविल, यू गॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब खेलते थे उस टाइम पे. तो फिर आई थिंक जो टीम अच्छा परफॉर्म भी करती है, जैसे अभी की जो जेनजी जनरेशन हम कहते हैं, पोस्ट 2000 वाले जो बच्चे हैं, वो सारे मैनचेस्टर सिटी फैंस है, क्योंकि सिटी अच्छा कर रही है फुटबॉल में. तो आपको वैसी टीम को देखने अच्छा लगता है जो सक्सेस देख सकती है और जिसके ऊपर आप बैंक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका एक कनेक्शन बन जाता है, ऐसा मुझे लगता है. तो आई थिंक आपकी बात जो आप कह रहे थे कि इंग्लैंड के फैंस बहुत सारे आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं, बिकॉज दे आर प्लेइंग सम वेरी गुड आई अट्रैक्टिव एंड आई प्लीजिंग फुटबॉल, व्हिच इज लुरिंग यंग पीपल एंड यंग फुटबॉलर्स टू लुक अप टू देम. एंड आज देखिए आप इंडियन सर्किट में कितने सारे लोग हैं जो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं इन दिस वर्ल्ड कप. बिल्कुल, आप बड़ी अच्छी पॉइंट आपने बताया, लेकिन मैं बता दूं कि अल थमामा स्टेडियम में कुछ अजीब सा हो रहा है. कुड बी अ रिकॉर्ड बिकॉज रेफरी राफेल क्लॉज, उन्होंने शायद एक्स्ट्रा टाइम डाली है 14 मिनट्स. 14 मिनट्स? यस, आई थिंक दिस कुड बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वेल. हमको अगर गलती ना हो तो या इट इज अबाउट 14 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, जिसका 6.5 मिनट अभी गुजर चुका है. सो आई मीन आई कांट रिमेम्बर, आई मीन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. यस, देयर वाज इंजरी, और इसके बारे में अभी वो पिच पे उन्होंने गेम रुका के ही अटेंड, द प्लेयर वाज अटेंडेंट, उनको काफी शुश्रूषा दिया गया, रिहैब हुआ थोड़ा सा. बट हमको याद नहीं है कि 14 मिनट्स ऑफ added time in some half. I have to again check the record. This has never happened. 14 minutes, I don't know, Pallav, but I know one particular match. It was, I think, Arsenal versus Chelsea in one of the FA Cup finals, where Chelsea were winning 2-1, and वहां पर कोई एक रेड कार्ड इंसिडेंट हुआ था, and that took like 8-9 minutes. But I think that was the max. जब वो हुआ था, मैंने तो हाइलाइट्स ही देखे थे, खैर मैं बहुत छोटा था, पर जब मैंने वो देखा तो मैंने बोला बाप रे, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम तो मैंने लाइफ में नहीं देखने वाला हूं मैं कभी. बट आई थिंक आज ये गलत थ्रू होते हुए, बिकॉज देयर वाज एन इंजरी टू द गोलकीपर, एंड आई थिंक गोलकीपर कैन नॉट बी टेकन ऑफ द फील्ड. यस, और मैं आपको भी याद दिला दूं कि पीटर सेच का यही हुआ था चेल्सी में. उनको पिच पे आफ्टर दैट ही पुट दैट व्हेन ही केम बैक, the special one, he just suggested him the skull cap and the mask and whatever. तो उनको जैसा हुआ था, that was one of the incident. Again, बहुत वक्त गया था, and there was a stoppage at the Euro Cup. अभी पिछले यूरो कप आपको याद होगा, क्रिस्टियन एरिक्सन, the whole the stadium was in silence. हम सब, I was commentating, हमको याद है क्या करना है, not getting messages और stoppage था. लेकिन उसके बाद में मैच कमिश्नर और यूएफए के ऑफिशियल्स डिसाइड की कि जहां तक मैच हुआ है उसके बाद में थोड़ा सा give some lee room, maybe 1-2 minutes, and then resume the match from that point where it's started. And thank God we got back Ericsson because of excellent intervention जो physio की जो cardiac team थी और सारे, and we got a great player back on the pitch. बाद में आए और लौट के आए. I think ये जो हम कहते हैं कि doctors are gods, I think उस दिन उन्हें प्रूव ही कर दिया कि actually they are gods, because it's about life and death. And वहां पर ऐसा हो गया था because मैंने तो चलो मैच लाइव देखी नहीं थी वो. I was actually busy somewhere. I don't remember what I was doing. I missed such an important event. आप सोचिए मैंने वो मिस नहीं, मैंने I was commentating, and उनकी वाइफ को बुलाया गया. अभी सारे खिलाड़ी जो है वो एकदम गार्ड करके जैसा गार्ड वॉल बनाए और स्टेडियम के बाकी सारे दर्शकों से उनको अलग रखा. There was curtains being pulled up. So we lost words कि क्या बताएं. अभी on the pitch हम ऐसे, मेरे लिए तो इंसिडेंट काफी लंबा साल में हुआ ही नहीं. And so they were all in tears. So रो रहे थे सारे खिलाड़ी, और उनको वाइफ को बुलाया गया, वो गए, बच्चे गए. And then suddenly after certain point of time उनको फिर बाहर ले जाया गया and stretcher, and then onto the ambulance, and then finally in the night
we got the message, he is in the cabin and he is waving, I'm all right. Yeah. So the whole world said, आपको याद होगा वो footage जो है इतना वायरल हुआ था, आपको शायद याद ही है. Yes. And people were in tears, people were praying for him, सारे सब उनकी भलाई के लिए, उनकी रिकवरी के लिए इतना प्रार्थना की. और he came back. But again, he is one, आप याद करो अभी, he is one who's got this heart problem. ये पहले भी 2 बार हुआ था in प्रीमियर लीग एज वेल. और इनको जो डॉक्टर ने कुछ मना किया है, he didn't pay heed to that, वो सुना नहीं, माना नहीं, और वो जम के खेले. and he proved that what character he is. अगर इंडियन कोई कॉन्टेक्स्ट में बात करे तो यू टॉक अबाउट अनवर अली, आप शायद जानते होंगे. हार्ट की ऐसे एक डिफेक्ट है हमारी ये यंग सेंट्रल डिफेंडर की. उनको बताया गया था कि आप फुटबॉल नहीं खेल पाओगे, बट उन्होंने वो छोड़ा नहीं. वो इंग्लिश डॉक्टर से भी बात किया, काफी सारे एडवाइसेस वो लिए हैं. ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और सबको एक ही बात कहा कि आई वांट टू प्ले द गेम. मुझे कुछ भी आप करो, आप मुझे खेलने दो, ऐसा कुछ कर दो ताकि हम खेल पाए. एंड नाउ ही इज प्लेइंग फॉर अ वेरी गुड फ्रेंचाइजी साइड एंड मेकिंग रेगुलर स्टार्ट्स एंड could be also a regular one in India. So these are the great comeback stories जो होती है ना, वर्ल्ड फुटबॉल में होती है. हमारे यहाँ भी हम जितने भी लेवल पे फुटबॉल खेले, हम भी ऐसा कुछ स्टोरीज हमारे भी है. आपने तो बहुत फुटबॉल देखा है पल्लव दा, मैं आपसे ये डिस्कस करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने भी पिछले ऐसे कुछ वीडियोस देखे जिसमें मैंने देखा था कि काफी वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑन द फील्ड. वी लॉस्ट मिक्लोस फेहर, वी लॉस्ट एंटोनियो पुएटा फ्रॉम सेविया. तो ये लोगों का अनफॉर्चुनेट ये हुए थे. बट आई रिमेम्बर प्लेयर्स लाइक फैब्रिस मुएम्बा एज वेल, जो आई थिंक बोल्टन के प्लेयर थे. व्हाइट हार्ट लेन में ही हैड कोलैप्स, बट देन ही केम बैक एंड ही quit football the next time. But we have to talk about this wonderful story of Eric Abidal. आपने देखा, he beat cancer twice, I think once or twice, and he got a comeback again and something like that. If you can, and what a farewell his club members gave him. आपको याद होगा शायद, exactly. Everybody wearing that, Abidal, and the whole stadium, or these are the great stories of course. I mean, बहुत ही ये अहम स्टोरी है. और कोई भूलेगा नहीं जो फुटबॉल जो पसंद करते हैं, जो फुटबॉल की फैंस हैं, तो ये सारे स्टोरीज तो बराबर याद रहेगा सबको. अभी अल तुमामा स्टेडियम में 12.5 मिनट एडेड टाइम बीत चुका है. ईरान भाग्यशाली है कि और गोल बढ़ा नहीं. इंग्लैंड शायद थोड़ा सा दे टेकिंग इट इजी, और लॉकर रूम में जाएगा, थोड़ा बातचीत होगा विद गैरेथ साउथगेट. ही वुड आल्सो एडवाइस कि टेक इट इजी, आप चलो आराम से सेकंड हाफ खेलो और कोई प्रेशर मत लो. एंड यू हैव मेड अ ग्रेट स्टार्ट बॉयज. और कार्लोस क्वेरोज इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर. मैं जितना सा उनको स्टडी किया है, जानते हैं, तो ही विल आल्सो गिव अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. तो सेकंड हाफ ऑफ कोर्स कुछ नया सा सरप्राइज भी ला सकता है, लेकिन 3 गोल अगर वो मार के उसको बराबर करे और कम बैक करे, तो एज आई टोल्ड यू, दिस कुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम बैक स्टोरीज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप, सारे वर्ल्ड कप पे. मैं अगली टिकट पकड़ के मैं कतार जा रहा हूँ और ईरान को सपोर्ट कर रहा हूँ अगर ये 3-all हो गया, because it is something remarkable and wonderful. But speaking of this, to all our fans and viewers, whoever are watching, please write in the comment section who are the 3 goal scorers, कौन थे जो तीनों ने गोल मारा है. और also follow, like and subscribe our YouTube channel Digital2 Sports. And football ball पर सर हम ऐसी ही बातें करते रहते हैं. We only talk about football क्योंकि हमारे पास पल्लव दा है जिनके पास 20-25 years का experience है about this sports. Sir, no, don't be modest, please. I've heard a lot about you and I'm really it's more than 46 years, 4.5 decades. Oh my god, my dad must be in his nappies when you started doing this. Yeah. But again, I know I'm as young as you, और फुटबॉल को हम भी एक स्टूडेंट हैं, अभी भी हम सीखते हैं. I do really learn, and it's really called the Yogi Bonito. So it's just one of the best games, a beautiful game. और आप मान लो कि FIFA World Cup एक इवेंट है जो इवेंट ऑफ इवेंट्स कहा जाता है. So this is one of the best, like the Cricket World Cup, the ODI, or maybe the T20 World Cup. अभी ये ऐसा ही इतना ही अच्छा ये एक बड़ा सा इवेंट है, और सारे दुनिया जो है, उनके फुटबॉल प्रेमियों जो है, वो पागल हो जाते हैं
you see people, the fans traveling, the English fans, the German fans, police का काम बढ़ जाते हैं, they try and separate them. I've seen once, it's so difficult to control them. क्या बताएं आप? मतलब आपने कहा 46 इयर्स से आप इस फुटबॉल को फॉलो किए जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू ब्रॉडकास्टिंग आल्सो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. मुझे आपसे ये सवाल, जब मुझे पता चला ना कि पल्लव दा इस नहीं, ब्रॉडकास्टिंग का ही साल उतना है, 46 इयर्स फ्रॉम बॉर्डर. जब मुझे ये पता चला कि आप मेरे साथ इस पैनल पे आने वाले, तो मैंने तभी एक क्वेश्चन डिसाइड किया था आपसे मैं पूछने वाला हूँ. नाउ 46 इयर्स यू हैव बीन ब्रॉडकास्टिंग फुटबॉल. हाउ हैज फुटबॉल ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द इयर्स? बिकॉज अभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो चुका है. जैसे मैं भी लोकल फुटबॉल खेलता हूँ यहाँ पे, डिवीजन फुटबॉल हमारे मुंबई में, तो वहां पे भी हमको निटी ग्रिटी बताई जाती है. टेक अ टच हियर, लुक हियर, स्कैन हियर, डू दिस, डू दैट, शोल्डर चेक, हजार चीजें हमको, क्यूज इतने सारे दिए जाते हैं. Football is very simple, but it's made very complex. So how is it, sir, different from when you started watching and to what you see in today's time in 22? Well, two things have happened. Football, when I started watching was, long time back. I started watching in 60s and early 70s and, at that time. But again, India really got the exposure to the World Cup, मान लो, or international football, जब television थोड़ा सा black and white से वो रंगीन हो रहे थे, and 82 was broadcast. We had a very good Asian Games. I did the Asian Games as well. तो उसके बाद में क्या है, अभी people started watching the game, और जब देखा तो कहा कि wow. But at that time, मैं बता दूं आपको, उस वक्त में आप जो था वो फुटबॉल थोड़ा सा और अटैकिंग फुटबॉल था. यानी कि गेम प्लेयर्स जो थे, जो स्किल्स प्लेयर्स थे, जो बॉल प्लेयर्स थे, उनको थोड़ा सा फ्रीडम मिलता था. इतना डिफेंसिव ओरिएंटेशन था ही नहीं. डिफेंसिव ओरिएंटेशन इटाली ने दिखाया. अभी वो जैसा मैंने कहा कि आप वो जमाने कैनवारो में जाओ आप, उनको जो है अभी भी वो उनका डिफेंस बहुत ही अच्छा है. People like Giorgio Chiellini, I mean, the generation is going, Bonucci, and a great players, yeah. But this happened, and then from 90 onwards, the football started changing because काफी सारे टेक्निक्स आ गए. अब जैसे बात कर रहे हैं ना आप फुटबॉल में टेक्निक्स आए. आई एम आल्सो इन द पैनल ऑफ द फीफा फुटबॉल मेडिसिन टीम. आई एम अ FIFA football medicine expert also from Zurich. So हम जानते हैं, I get regular updates from the FIFA और medical committee. तो अभी क्या है, काफी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं फुटबॉल के बारे में. अभी आप पहले हम बोलते थे भाई ये बहुत वर्कलोड लेते हैं. You talk about Davids in the team of Netherlands. सोचो कि अभी जो बहुत एक्सीलेंट वर्क रेट है, अभी हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि भैया ये 13 किलोमीटर 13.42 किलोमीटर दौड़े हैं. इसका हाईएस्ट पेस था हिटिंग अबाउट 35 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. इनको वर्क रेट ऐसा है, इनको हार्ट रेट ऐसा है. अभी फुल टेक्निक जो है ये सारे बदल चुका है. सो ऑल द कोचेस दे हैव द वीडियो एनालिस्ट. ये नहीं था. सो और जितने सारे नया टेक्नोलॉजी, सोचो अभी यहाँ पे वर्ल्ड कप में भी ना आपको सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आया है कि आप ऑफ साइड को आप कैमरा से उसको आप कर सकते हो. दिस इज समथिंग न्यू व्हिच हैज हैपेंड. 2014 में क्या आया, यू सॉ द मैजिक स्प्रे. कहाँ आप फ्री किक में खड़ा हो गए, कहाँ बॉल रहेगा, रेफरीज वो मार्क कर रहे थे. और सेकंड थिंग इज यू गॉट अ गोल लाइन टेक्नोलॉजी. आपको याद होगा शायद, ये क्रॉस करने से वो बॉल के अंदर में चिप डाला गया, एंड इफ इट क्रॉसेस द गोल, द अंपायर हियर्स अ बिप, एंड द वीडियो असिस्टेंट रेफरी आल्सो. देन केम द वार. You got a cooling break. 2014 Brazil World Cup, याद होगा शायद, क्योंकि वो भी गर्म कंट्री में था. फीफा का स्टिपुलेशन है, whenever you are playing in a temperature above 30 degrees Celsius, आपको each half में एक बार 2 मिनट के लिए आपको कूलिंग ब्रेक देने का है, क्योंकि you lost a lot of fluids. आपको शरीर से जो है पानी, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम सारे निकल जाते हैं. तो आप इसको रिप्लेनिश करने का है, आपको ये बिल्कुल हटाने का है. तो दैट इज द रीजन. तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज. एंड नाउ लेट मी टेल यू, आपको जो अभी मॉडर्न फुटबॉल जो है, इसमें स्किल है, इसमें मेसी भी है, इसमें शायद रोनाल्डो भी है, नेमार भी है, लेकिन इसमें और साइंस भी है, इसमें काफी टेक्नोलॉजी भी है. और इस सब की आप मान लो कि एक अच्छा सा
मिलाव है, अब अच्छा सा देयर इज अ बिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, द बॉल स्किल, द फुटबॉलिंग स्किल और Yes. आपकी साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स, ये सारे उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया। क्रिकेट में जैसा आप सारे चीज वीडियो एनालिसिस करते हो, फुटबॉल ऑल्सो यू हैव अ चांस ऑफ ग्रेटर एनालिसिस ऑफ Right. प्लेयर्स, ऑफ ईच मूवमेंट्स, ऑफ सारे गोल करने के तरीका, किकिंग टेक्निक्स, डिफेंडिंग टेक्निक्स, सारे कुछ। नहीं तो यही तो मैं कह रहा हूँ विद द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी और विद द adaptation of technology in sports at this level, it has brought a kind of a very big transformation. जो आपने word transformation use किया वो बहुत ज्यादा होता आ रहा है, and I as an Indian would be very happy to see my country represent in the World Cup, क्योंकि हम तो अभी ऐसे जनरेशन में कि भाई उम्मीद करो और थोड़ा थोड़ा सा सपना बरकरार रखो और प्लान करते जाओ। द फीफा, सम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल फीफा का बताया कि भैया इंडियन मेन के पहले शायद इंडियन वुमेन टीम वो वर्ल्ड कप पहले खेलेगी। wow So there is a chance that, I mean, we had a under 17 women's World Cup, जी under 17 the boys World Cup we had in 2017 हुआ था, yes और अभी अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फॉर वुमेन कंप्लीट हुआ। तो लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अभी हौसला भी बढ़ रहा है, थोड़ा सा ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी आप मान लो, कोई कोई ऐसे बोल रहे हैं कि दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ द फीफा कि भैया इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, सो यू हैव टू से गुड वर्ड्स टू देम, अच्छा बात करने का है उनके बारे में। लाइक व्हेन सेप ब्लैटर विजिटेड इंडिया, उन्होंने आके कहा था कि भाई इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट yes फुटबॉल they की। are या लेकिन अभी अभी जो है हमारे यहाँ, आप सच मान लो एक चीज, हमारे अभी भी हम टेक्निक में, क्योंकि हम काफी हम एक बार इंडियन टीम से हम काम किए हैं, आई बीन संतोष ट्रॉफी विनिंग मेंबर ऑफ द बंगाल टीम आल्सो, oh लेकिन हम काम कर चुके हैं ना, तो हम देखे हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम मान लो कि इन कंपैरिजन टू एनी कंट्री, एनी यूरोपियन कंट्री, हम yeah yeah स्पेन जर्मनी छोड़ दो आप, इवन कनाडा छोड़ दो आप, अर्जेंटीना या ब्राजील छोड़ दो, आप एनी एवरेज यूरोपियन कंट्री के जो स्टैंडर्ड्स है और टेक्नोलॉजी है उसके जरिए आप कहाँ पे हो मानते हो? आप रूडिमेंट्री हो, आप प्री नर्सरी पे स्टेज पे है, oh आप oh प्री स्कूल स्टेज में है, यू आर टॉडलर, तो आपको यहाँ से जाने का है। लेकिन हाँ, उम्मीद करो, आप हौसला रखो, और जैसा कपिल देव ने कहा था वर्ल्ड कप जीतने के पहले कि हम यहाँ कप लेने को आए थे, सो यू हैव अ ड्रीम, यू yes हैव अ yes ड्रीम, यू वर्क फॉर इट। आपको जब आदमी उनको कपिल को बात सुन के उन्होंने हंसा था, आई फॉलोड कपिल देव ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, वो 83 वाला, सो जी आई नो, एंड ही इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम उनको अभी भी फॉलो करते हैं, वी आर सच क्लोज, whenever we get chance we commentary sting में भी बात करते हैं उनसे, काफी सीखने का है, he is a great person anyway, like Sunil Gavaskar also, he always gives you so many good tips। तो definitely ऐसा है, उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा जब कहा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदमी हंसा, शायद आप फिल्म में देखे भी होंगे, तो दैट्स हाँ नॉट एक्सैजरेशन, ये that's सच fact सच बात है कि उन्होंने कहा कि व्हाट दिस गाइज आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग नॉनसेंस, लेकिन उन्होंने किया, दे मेड इट हैपन एट द लॉर्ड्स। तो ऐसा ही है, आपको अभी ये बहुत ही बड़ा एक ड्रीम है, बहुत ही बड़ा आपको मान लो कि टारगेट है, आपको मिशन है, लेकिन आप अगर प्लान करोगे, आप अगर बीच रास्ता में रुक ना जाओगे, तो यू कैन मेक इट, आप कर सकोगे। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई बिलीव दैट। sir, you've seen so much that you have the comparison to make, how India has also transformed in football. अभी आप recently हम देख रहे थे, हमने एशिया कप में decent performance किया, we won the Independence Cup and all these tournaments that happen. I used to watch, I started watching Indian football very late. Indian ओके football ओके, नहीं नहीं, मैं कह दूं एक चीज, यश, अभी एशिया की बेस्ट टीम हो कि ईरान क्वालिफाई किए हैं इन द वर्ल्ड कप। yeah नाउ यू कंपेयर ईरान वीजा विस, अभी आप ईरान से काफी स्टेजेस नीचे है, राइट? yeah यू yeah स्टिल नॉट एट पार विद एनी ऑफ द एशियन कंट्रीज, आप मान लो ये, क्योंकि अभी वेस्ट एशिया के पास क्या है, जहां वर्ल्ड कप हो रहा है, उनका है स्ट्रेंथ, and they have got the money, right? They can get players, they can get even the others to settle there, उनको
अपना सिटीजनशिप देकर सिटीजनशिप दे देते हैं, एंड दे हैव द टेक्नोलॉजी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द स्ट्रेंथ एंड द स्टैमिना बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल बिल्ड। और अभी आप सॉन जैसे खिलाड़ी देखो इन द ईस्टर्न एशियन ब्लॉक, राइट, इन जापान, इन कोरिया, तो इनमें जो है इनमें स्किल ज्यादा है, क्योंकि द पीपल ऑफ द मंगोलॉइड बिल्ड दे ऑलवेज हैव बेटर स्किल्स। लाइक हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के आप देखो, उनके बहुत अच्छे ऊंचे कद के नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा शॉर्ट बिल्ड, एंड शॉर्ट बिल्ड पीपल हैव गॉट बेटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो छोटा जगह में घूम सकते हैं। यू सी मेसी, यू सी मैराडोना, सो ये होता है। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अभी इंडिया is never at par with any of the good sides in Asia. एशिया में हमारा रैंकिंग इतना अच्छा अभी नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू, मैं जैसे आपने बताया आपको, we can improve and inshallah we would do it, of course. Yes, hopefully I don't want to be that old, but I really want to see my country play in the World Cup. Yeah, of course. I mean, और देखिए अभी कतार में भी जो है ना, पहला दिन जब पहुंचा, सारे वो वेव्स कर रहे हैं, अर्जेंटाइन सब टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्राजील को कर रहे हैं, तो एक बहुत ही वहां वायरल हुआ था कि ये ऑल फेक फैंस एंड थिंग्स, बट फाइनली वी फाउंड आउट द इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस वहां पहुंचे हैं। मैं क्रिकेट का तो बात छोड़ ही देता हूँ, जहां भी होता है हमारे पूरा टीम सुधीर जी और फुल इंडियन आर्मी सारे चले जाते हैं, भारत ब्रिगेड, ओके, भारत आर्मी। बट फुटबॉल में वर्ल्ड कप जो हो रहा है, इसमें जितने सारे दर्शक टूरिस्ट जो गए हैं, उसमें काफी इंडियंस है, वो मिडिल ईस्ट पे रहते हैं, अबू धाबी, दुबई, सारे जगह से गए हैं, इंडिया से कई आदमी गए हैं, मेरे जान पहचान तो कई हैं, मेरे काफी फ्रेंड्स गए हैं, मेरे काफी एब्सोल्युटली। सो अभी हम दूसरे को विक्ट्री सेलिब्रेट करने को जा रहे हैं, तो इससे सबसे बढ़िया ये क्यों ना हो कि हम हमारे विक्ट्री सेलिब्रेट करें। आपको याद होगा शायद अंडर 17 वर्ल्ड कप यहाँ पे इंडिया में हुआ, हम एक गोल किए थे, एक ही गोल हुआ था, आपको याद होगा, जैक्सन सिंह वो गोल किया, तो उसको हम बराबर अभी कहते रहते हैं कि वी हैव स्कोर्ड अ वर्ल्ड कप गोल, या ऑफ कोर्स इज अंडर 17, बट ये जो चीज है ये बोलने का चीज होता है, दिस इज समथिंग विच यू ऑलवेज टॉक अबाउट। तो मैं यही कह रहा हूं कि अभी आप दूसरे को विक्ट्री, दूसरे को जो खुशी आप वो मना के जा रहे हो, तो आप क्या है, आप बाराती भी नहीं हो, आप बाहर वाले हो, लेकिन आप घुस पड़े हो, लेकिन यू एंजॉय द गेम, आप फुटबॉल के फैन हो, फुटबॉल फैनेटिक हो, तो आप वहां जुड़ गए। लेकिन सबसे बढ़िया यही होगा कि हम खुद वहां पे पहुंच जाए, so that is also going to be very very important. So abhi it is going to be very important for the Iran team के लिए भी काफी important होगा कि वो अभी बिल्कुल 3 गोल से पिछड़े हुए हैं। अनुभव, आर यू देयर? Yes sir, yes पल्लव दा, क्या है, 3 गोल हो गए अभी, और क्या होने क्या है, टेनिस स्कोर होगा क्या? सर पता नहीं, हो सकता है, आई थिंक 5 तो इंग्लैंड मार सकती है, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब समटाइम्स क्या होता है, आप लीड ले लेते हो, बढ़त ले लेते हो, अच्छी लीड होती है, यू माइट थिंक इट्स एन अनअसेलेबल लीड, बट यू माइट एंड अप बिकमिंग कंप्लेसेंट। तो how do you remind yourself कि देखो, even though the game might be more or less in the bag, we can't keep our eyes off the prize in the second half? देखिए, इसके बारे में मैं कह रहा हूँ, एक चीज कह रहा हूँ, बिकॉज however criticism जितना भी इनके हम कपड़े उतार चुके हैं गैरेथ साउथगेट की, फ्रॉम दैट टाइम ऑफ यूरो, और उसके पहले से भी, बिकॉज वहाँ उनको जो बड़े बड़े हस्तियां जो हैं फुटबॉल के, तो उनको कोई मानते भी नहीं थे। पहले जब वो पार्टी में जाते थे तो ये ये इज आउटसाइडर, फ्रैंक लैम्पार्ड हो या स्टीफन जेरार्ड हो, जैसा जाने से कहीं, या वेन रूनी, डेविड बेकहम, सारे वो उनके पीछे दौड़ते हैं ना, द सिविक सोसाइटी। तो इनको तो कोई बिल्कुल बोला ये कौन है भैया, ये कहाँ से आया है। नाउ ही इज द होल थिंग इन द यूरो, जैसे वो टीम को ले आया। नाउ पीपल आर लिस्टिंग टू गैरेथ साउथगेट, उनको सारे आप जानते भी होंगे, इतने हैशटैग्स हुए उनके, द वेस्ट कोट कोच एंड व्हाटएवर। तो अभी उससे वो उभर के आए हैं, ही इज कम आउट ऑफ दैट एंड ही इज डेवलप्ड अ गुड स्ट्रेटेजी। उनका डिफेंस देखिए, इंग्लिश टीम का डिफेंस बराबर ही अच्छा होता है। यू हैव द ग्रेटेस्ट ऑफ डिफेंडर्स, आप इंग्लिश फुटबॉल की हिस्ट्री में देखो,
जैसे आपने कोई अच्छे फॉरवर्ड्स भी आपको मिले हैं, ब्रिलियंट मिडफील्डर्स मिले हैं, अच्छे डिफेंडर्स भी मिले हैं। सो दे नो हाउ टू डिफेंड। और क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में इतना टक्कर होता है, मैं जैसे यश का बात कर रहा था, तो आई टोल्ड देम दैट इन दिस वर्ल्ड कप 173 प्लेयर्स आर प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड कप जो ईपीएल खेलते हैं। So this is amazing. The next to it is German 80 and Spain 87 players जो स्पेनिश लीग और जर्मन लीग में बुंदेसलीगा खेलते हैं एंड ला लीगा खेलते हैं. So you have the best possible thing, the strategies, the coaches, you have the best coaches in the EPL. तो इससे तो इंग्लिश खिलाड़ी लोग शायद बहुत ही सीखे होंगे ना. So they know how to defend, should. और अगर ये हो सकता है कार्लोस क्वेरेस कुछ मैजिक किए हैं इन द लॉकर रूम आप इंटरवल में जाके, इफ दे कम बैक, इफ दे कैन लेवल स्कोर 3-3 वो अगर बना दे, बराबर आ जाए, दैट विल बी इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप द बिगेस्ट कमबैक. मैं आपको बता देता हूं, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल एकदम. सर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ी. यू टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है इतनी ग्लोबल लीग है, एंड द फैक्ट दैट यू हैव प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेइंग इन द लीग. It makes the league a very compelling spectacle हम लोग के लिए, from a neutral perspective या fans के नजरिए से. नहीं, अभी इंडियंस काफी वो इंग्लिश प्रीमियर लीग काफी फॉलो करते हैं. Exactly. मैं यश को ऐसा ही बोल रहा था कि अभी इतने सारे न्यू जनरेशन जेन वाई है और बाकी सारे जितने जो यंग बॉयज हैं, तो ये सारे तो कोई चेल्सी के फैन है, कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है, कोई सिटी के फैन है, कोई आर्सेनल को कुछ अच्छा नहीं कर रहा था पिछले कई सीजन, अभी इस साल दे कमिंग बैक. तो अभी ये सारे दे गेटिंग द रियल टेस्ट ऑफ इट. और आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि दिस इज रियली अ ग्लोबल लीग. एंड यही एक बात पे चर्चा हो रहा है, सारे फुटबॉल के जो पंडित्स है, जो एक्सपर्ट्स है, वो बोल रहे हैं कि जिसके कंट्री में इतना अहम, इतना रिच लीग है, उसको मान लो एक 1966 का रह गया वो शेल्फ पे, बॉबी मूर वाला एक ट्रॉफी वर्ल्ड कप मिला था. इसके बाद में नो मेजर सक्सेस एक्सेप्ट एट द जूनियर लेवल. आप इंडिया में आप 2017 अंडर 17 वर्ल्ड कप जीते हो, एंड यू वन द नेक्स्ट ईयर यू वन द अंडर 20 वर्ल्ड कप. और उससे काफी खिलाड़ी अब आए हैं, फिल फोर्डन से, जैक ग्रिलिश से, सारे नए टैलेंट्स उभर के आए हैं. सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नाउ दे शुड गेट इट. मेजर सिल्वरवेयर उनको मिलना चाहिए. वही उसकी उम्मीद है कि वो यूरो जीते. और जैसा मैंने कहा यूरो के बारे में, तो दैट टाइम यू रिमेम्बर द फाइनल पिछले साल, इट्स कमिंग होम, और सारे कुछ इतना कैंपेन्स हुआ, एंड वेम्बली पीपल वर शेल शॉक्ड. डोनारुमा जो सेव्स कर दिए, तो the whole dream went away. So this is important. देखिए 3 चेंज मैंने कहा था ना, कार्लोस क्वेरेस कुछ ऐसे ही एक कोच है, एक शख्स है जो एब्सोल्युटली द सेरेब्रल पर्सन और बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है. उन्होंने 3 परिवर्तन किए हैं ईरान टीम में. शायद इसमें कुछ मैजिकल अंतर या फर्क हो जाए, तो ही इसका उम्मीद मेरे है. देखना पड़ेगा अभी. सर आपने कार्लोस क्वेरोस की बात की. ऑफ कोर्स a lot of people remember him as the assistant manager alongside Sir Alex Ferguson मैनचेस्टर यूनाइटेड में. और काफी प्लेयर्स हैं, the likes of Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo as well during his first spell यूनाइटेड के साथ, जो अपने सक्सेस को they attributed their success to Carlos Queiroz and the impact that he had on the players along with Sir Alex Ferguson. Of course I don't know, आप उनके बारे में ज्यादा जानते हैं. Of course अब वो हेड कोच है ईरान के, पहले भी काफी कोचिंग स्टिंट्स कर चुके हैं, नॉट जस्ट वो 11 से 17 तक ही हैव अ गुड स्टिंट. ही इज बोर्न टू पोर्चुगीज पेरेंट्स. तो उनको क्या है, पोर्चुगीज पीपल से सोचो कि रोनाल्डो से भी काफी दिलचस्पी है उनको. राइट. तो he works well with that team. Yeah. हाँ, तो उनके बारे में any insights that you have as to why players are so drawn to him? मतलब उनमें what does he have as a man manager जिसके वजह से उनका प्रभाव इतना strong होता है प्लेयर्स के ऊपर? देखिए 2 चीज है. he is a very strict person. अभी सोचो कि मैन मैनेजर जो है, आप कहो तो I would name Fernando Santos as the best man manager. क्योंकि वो क्या करते हैं, he is a very I wouldn't call him clever,
बहुत ये तो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो स्टार्स है ना उनके बात पे चलते हैं। आप हाँ पे हाँ बोलो, ना पे ना बोलो, तो ये भी एक चीज है। आप देखो ना, ये रिसेंट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला जो जो प्रॉब्लम हुआ है ना विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो ये तो इसी के पर्सनालिटी का क्लैश हो रहा है। कोच का काम क्या है? कोच शुड ऑलवेज ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ द प्लेयर। उनको सबसे पहले फुटबॉल मैनेजमेंट के पहले उनको जरूरी है कि वो मैन मैनेजमेंट करे। और इसीलिए कोई कोई कहते हैं कि अभी सर एलेक्स फर्गुसन वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट टास्क मैनेजर, लेकिन वो खिलाड़ी से जो जैसे जिस तरह से वो मीट करते थे, जो मिंगल करते थे, किसको थोड़ा पीठ पे हाथ रखे कुछ बताए, कुछ सर पे हाथ रख के कुछ बताए, किसको बहुत ही भगाया, दैट इज अ यू नो पेनल्टी सॉर्ट ऑफ थिंग, और यू नो दैट्स अ फाइन टू हिम। तो वो सारी चीज वो मिक्स करते थे। ये एक बड़ी बड़ी चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंट टाइम में ये अच्छा किया है। मैं मेरा हिसाब से दो दो कोच, फर्नांडो सैंटोस, वॉट एवर द यूरो सक्सेस ऑफ पोर्चुगल, आप ये इसको अगर 70% क्रेडिट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लीडरशिप को दो, तो भी फाइनल नहीं खेला, 22 मिनट पे चोट लग गए, वो बाहर चले गए। लेकिन the way he was running all throughout, you know, on the technical area, Fernando Santos back seat ले लिया, so he knows that this guy will drive, इनके मोटिवेशन से ही टीम चलेगा। और वो फाइनली जीत भी गए। 2016 की बात कर रहा हूं मैं। कोई याद है? अब दो दो फाइनल के गोल स्कोरर को दुनिया शायद भूल चुके हैं। 2014 फीफा वर्ल्ड कप, मारियो गोत्सा, वन मैन वन मैच वंडर बोल रहे हैं, बट उनकी लक थोड़ा खराब है, कुछ बीमारी हुआ, चोट लगा, और ही वेंट ऑफ। एंड दैट फाइनल, पोर्चुगल फ्रांस, ही गॉट अ गोल स्कोरर इन नेम ऑफ एडर। उनको ज्यादा सुने हैं इसके बाद में नहीं। सो दीज आर द थिंग्स यू नो हैपनिंग, बट फर्नांडो सैंटोस हैज गॉट अ ग्रेट, यू नो, आई वुड से टेक्निकल स्किल, उनकी विजन बहुत अच्छा है। ही अलाउड, ही इज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, बट वो जानते हैं जब एक मेरा सुपरस्टार है, आई शुड अलाउ हिम टू उनकी अपनी तरीका से वो करो, अपना करिश्मा दिखाओ, और मेरा क्या चाहिए? मेरा ट्रॉफी चाहिए, दैट्स इट। और ये मैनेजमेंट ऐसा मैं यर्गन क्लॉप को थोड़ा दूंगा, वो भी थोड़ा थोड़ा सा प्लेयर्स मैनेजर है। ही ऑल्सो इन मिक्सेस सो वेल। जब यू नो मैंने था, या अभी भी मो साला है, तो सबके साथ वैन डाइक, सबके साथ इतने अच्छे, एंड ही इज अ वेरी वेरी जोवियल पर्सन, लेकिन ही हैज आल्सो गॉट हिज टास्क कट आउट। आर्सेन वेंगर मैं कहूं थोड़ा सा वो यू नो सॉर्ट ऑफ टिपिकल इंग्लिश, यू नो ऐसा ही था, थोड़ा यू नो स्कॉटिश, उनका बोलते हैं हम, नाक ऊंचा होता है थोड़ा, यू नो ही इज गॉट अ हाई नोज। तो वो, लेकिन उनके टाइम में भी देखो आर्सेनल की कितना सक्सेस है, गनर्स की तो मैक्सिमम सक्सेस उन्हीं के टाइम में हुआ है। कितने सारे खिलाड़ी वो लाए हैं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यू नो, टू ब्रिंग अप द यंग टैलेंट्स। क्यों एलेक्स फर्गुसन को सब दुनिया याद रखते हैं, क्यों सर कह जाते हैं उनको? क्योंकि इतने सारे नए खिलाड़ी को लाए हैं। हु ब्रॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो? इट वाज सर एलेक्स फर्गुसन। उन्होंने चूज किया, टाउट्स ने लाया, देख के उन्होंने कहा कि यस, दिस गाय हैज गॉट सम टैलेंट, ही विल विन द वर्ल्ड। तो यही एक होता है ना विजन। तो आपको मैनेजमेंट करने में खिलाड़ियों के, यू नो, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और सर इनफैक्ट सर एलेक्स फर्गसन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में कहा भी था कि द बेस्ट मैनेजर्स आर द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट्स। आपने मैन मैनेजमेंट के बारे में बात की, और आपने ये भी कहा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड वेरी पर्टिनेंट पॉइंट उठाया, कि देयर आर सम प्लेयर्स हु माइट नीड अ पैट इन द बैक, whereas there might be others who might need a stern word. तो प्लेयर की साइकोलॉजी जो स्टर्न है, वर्ड अगर किसी को जरूरत है, जैसा लुइस सुआरेज, एवर एवर नॉटी बॉय, बराबर ऐसा कुछ 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 करेगा, कुछ डिफिकल्टी होगा, कहीं झमेला में जाएगा, यू नो, एंड यू नो पीपल कुडंट। मैं बात कर रहा था अभी यश से कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज वाज वेस्टेड, पॉल गैस्कॉइने, यू नो, यू टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, तो कितना यू नो ग्रेट। और एक चीज इसमें, इसके बीच में थोड़ा स्टैट बता दूं कि अभी फर्स्ट हाफ में 3 गोल इंग्लैंड ने 4 बार, दिस इज द फोर्थ टाइम दैट दे कुड मैनेज 4 गोल्स। और अब देखना है कि वो
क्लीन शीट रख पाए कि नहीं, और ईरान कैसे लौट के आए, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। आपको क्या लगता है क्या होगा अभी? कुड ईरान कम बैक? मैं इनफैक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था, सो आई नहीं, माइट जस्ट, मैं आपको उल्टा पूछ रहा हूँ कि आई टोल्ड यू इफ दे कम बैक इट्स गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट हाँ रिवाइवल ऑफ इन हाँ, द हिस्ट्री ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड कप। लेकिन आपको मैं क्या सर लगता है? ऑनेस्टली आपको क्लीशेड आंसर ही दूंगा। आई से कि इट्स अ फनी गेम, फुटबॉल इज अ फनी गेम, एनीथिंग कैन हैपन। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इम्प्रोबेबल जरूर है मेरे मेरे नजरिए से। सो आई सी इंग्लैंड विनिंग दिस कंफर्टेबली। आई इनफैक्ट फील कि इस गेम में और भी गोल्स है। इंग्लैंड इंग्लैंड, क्या इस ग्रुप टॉप कर सकता है? आई वांट टू आस्क यू व्हाट डू यू फील? I think England's going to top the group. I think England's going to top the group. They ये जीत जो होगी उनके लिए, of course still some time left to play. उनके confidence के लिए will be very good, because I think Yash and I were talking about this as well. You know, it's a cliche, but they say the start oftentimes sets the tone for the rest of the tournament that follows. And I think in big tournaments, आपके first couple of games have a big impact on how you perform or what kind of confidence you play with in the rest of the game. जैसे विराट कोहली ने भी recently कहा था after India beat Pakistan, saying कि, you know, it's just one game. You might say it's just one game. It's the first game. There are lots of games left to play. लेकिन जो पहली गेम की जीत होती है वो बहुत मायने रखती है. Granted कि India did not end up winning the T20 इम्पोर्टेंट, World मैं Cup. यही कहना जा रहा था, क्योंकि मैं इतने सालों में कई ऐसी टूर्नामेंट्स देखे हैं इंडिया में और इन द वर्ल्ड, हाँ कि जहां आप ब्रिलियंट स्टार्ट करे हो और फेड किए हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ग्रेट खिलाड़ी और कोच थे इंडिया के, काफी सक्सेसफुल कोच माना जाते थे क्लब लेवल पे, पीके बैनर्जी। तो उन्होंने बराबर ये कहते थे कि भाई आपको सही वक्त पे पीक करने का है। टूर्नामेंट का जो बिजनेस एंड होता है, अगर जो मान लो नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो आपको क्वार्टर फाइनल से आपको पीक करने का है। अब ग्रुप स्टेजेस में सोचो कि अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा कोई इंडिया को T20 वर्ल्ड कप ऐसा हुआ, हाँ ठीक है, पाकिस्तान मैच कुछ अलग सा है, दैट्स डिफरेंट, दैट इज क्लैश ऑफ क्लैश, दैट इज द मास्टर ऑफ और मदर ऑफ ऑल क्लैशेस, ये मान लो। लेकिन बात ये है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू प्लान द थिंग, और टीम को भी पिक पे ले आओ। और दो चीज और भी मैं कहना चाहता था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ल्ड कप एज इट हैज स्टार्टेड दिस वे, कि ये बिल्कुल एक इंजरी रिडन वर्ल्ड कप है। काफी सारे ब्रिलियंट खिलाड़ी लोग बाहर है। यू डोंट हैव अ बेंजेमा, यू डोंट हैव अ साडियो मैने, यू डोंट हैव अ पॉल पॉगबा। तो कितने की बात करें, रोमेलो लुकाकू 2 मैच पहले, फर्स्ट 2 मैचेस ही वुडंट बी प्लेइंग। सो द ग्रेटेस्ट ऑफ स्टार्स आर मिसिंग क्योंकि इंजरी के लिए। और ये टूर्नामेंट नवंबर दिसंबर में किया गया टू एकोमोडेट द वेदर ऑफ कतार। एंड आप जब लीग्स आपके चलते हैं ना, तो दैट टेक्स आउट ऑल। आप सोचो कि मान लो आप इंग्लिश प्रीमियर लीग खेल रहे हो, आप लीगा 1 खेल रहे हो, आप ला लीगा खेल रहे हो, तो दैट टेक्स एवरीथिंग आउट ऑफ अ प्लेयर। बिल्कुल आप एकदम, जैसा आप शुगर केन देखे हो ना, तो उसको अगर निचोड़ लो तो उसके बाद में जैसा रहता है, खिलाड़ी लोग ऐसे ही पहुंचते हैं। सो मसल्स गेट टायर्ड, योर मेंटल स्टेट गेट्स टायर्ड। मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि स्टीव स्मिथ जैसा ब्रेन फेड हो जाए, ऐसा नहीं हो, लेकिन यू कांट अराइव फ्रेश। वर्ल्ड कप्स बराबर इट वाज ऑलवेज इन जून एंड जुलाई, जून टू जुलाई, स्टार्टिंग इन जून एंड एंडिंग इन जुलाई। ये अभी आपको बीच पोजीशन में लीग बंद करके करा के आप कतार को एकोमोडेट किए हो। So again, this World Cup, most of the teams, I know that because मैं FIFA की मेडिकल कमेटी का भी एक मेंबर हूँ, ऐसा सर्टिफाइड फुटबॉल मेडिसिन एक्सपर्ट एज वेल। तो हमारे सारे ये एडवाइजरीज आते हैं ना। So most of the teams, coaches and the support staff and the medicos are worried about the injury, कि भाई इसको इंजरी ना लग जाए, इसको संभाल के रखना होगा। एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू बी अ मेजर कंसर्न। मैं 2 चीज कह रहा हूं, चैंपियन यहाँ वही बनेगा जिसका राइट टाइम में वो पीक करेगा, दैट इज दे पिक फ्रॉम द क्वार्टर फाइनल स्टेज एंड बियॉन्ड, नंबर 1। एंड नंबर 2, द स्क्वाड विच रिमेन्स मोस्ट इंजरी फ्री, जिसके जितने कम इंजरीज, जितने कम चोट और ये समस्याएं जो ना हो, तो वही चैंपियन बनेगा। अब मान लो कि एक टीम में पोर्चुगल के आप मेसी को
रोनाल्डो को कुछ गॉड फॉरबिड ना हो, थोड़ा मेजर इंजरी हो जाए, आपको 2014 याद होगा, नेमार बाहर, ब्राजील 7-1 लूजिंग। मैंने वही मैच में भी कमेंट्री कर रहा था, शायद यू नो some way Indians are either in heart supporting Brazil or Argentina or maybe now these days Germany or Spain or England, लेकिन कुछ बोलने का वर्ड नहीं था, लफ्ज बंद हो गए, goal after goal, goal after goal, and what's happening? So this is what Neymar without Brazil without Neymar. तो मान लो कि कोई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी किसी को चोट लग जाए, ईश्वर न करे, तो इसमें ये फुल टीम का जो है ना, ये एक प्लानिंग और इसकी जो इरादे हैं जो है, ये बर्बाद हो जाएगा। सर जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, मैं रिसेंटली हैरी केन का एक इंटरव्यू देख रहा था एंड उनसे पूछा गया था कि इट मस्ट बी चैलेंजिंग कि देखिए मिडिल ऑफ द सीजन वर्ल्ड कप हो रहा है, जब आप प्रीमियर लीग सीजन का आधा हिस्सा ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो आपको थकान महसूस हो रही होगी, यू मस्ट बी फटीग्ड एज प्लेयर्स। एंड हैरी केन ने कहा कि I honestly don't mind this because when you're entering a World Cup on the back of few games under your belt, then वो it's almost as if तुम rhythm में हो, as opposed to when you're entering the World Cup on the back of a lengthy break. Then it might take you a little bit of time to find your footing, to find your bearings. That's what Harry Kane said. Of course, different strokes for different folks, to each his own. So different players might have different perspectives, and I'm not taking anything away from how unfortunate the injuries have been. लेकिन आपके क्या राय? Like, what did you make of Harry Kane's comments that he doesn't mind entering a World Cup on the back of the half the Premier League season? देखिए, this is again as I told you, बात ये है कि जो ब्रिटिश और यूरोपियन ब्लॉक, इसके बीच में कह दूं कि 4th गोल भी डाल दिया इंग्लैंड ने। सो अगेन ये थोड़ा सा टेनिस स्कोर जैसा लग रहा है, एंड क्या होगा पता नहीं है। कार्लोस क्विरोज 3 चेंज तो किए हैं, लेकिन द थिंग्स हैव नॉट चेंज, द फॉर्च्यून हैज नॉट चेंज। सो दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट अभी इनके लौट के आने का। सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, ये तो आप मान ही जाओ। एंड so that is what is going to happen. And Bukayo Saka ne is on a hat trick. उन्होंने दूसरा गोल भी डाल दिया, and this was a talent. I first spotted him during the Euro Cup. मैंने देखा था उनको. I was commentating on his certain England games. Brilliant था वो, उसका burst of speed, उनका थोड़ा सा, he was always brought by Gareth Southgate as a substitute off the bench. और off the bench में आके जो burst of speed और सारे जो वो डाल रहे थे ना, तो that was excellent. तो यही मेरा कहने का मतलब है, अभी आप पिक जो कर रहे हो ना, थोड़ा सा लेट पिक करो तो अच्छा है। यू डोंट स्टार्ट वेल, यू स्टार्ट नॉट लूजिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ल्ड कप का पहला मैच ऑलवेज इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और कैमरून, सेनेगल, ऐसा जैसा टीम है ना, ये सारे आपको कभी कभी चौकन कर दे सकते हैं। दे कैन जस्ट बीट यू हैंड्स डाउन। तो इसमें अभी इंपॉर्टेंट यही है कि ये थोड़ा सा ऐसा ही मैनेज करके थोड़ा सा धीरे से वो चले और अपना जो मिशन है वो अचीव करे। ये तो बिल्कुल एकदम पक्का बात है। और पीक सही वक्त पे ही करना। अभी हैरी केन ने ये कहा है, लेकिन मैं एक चीज कह दूं, यूरोपियन सारे खिलाड़ी और लीडर्स जो टीम के हैं ना, ये ना फुटबॉल के सिवाय वर्ल्ड कप के बारे में, फुटबॉल के गैर फुटबॉल इश्यूज में ज्यादा फंसे हुए थे। एंड नाउ दे वर सपोज्ड टू वेयर सम बैंड, वन लव एंड व्हाटएवर, और सारे जो ह्यूमन राइट्स की इश्यूज थे ना, तो उसके बारे में उनके प्रोटेस्ट एंड वगैरह ये सब करने का था। यू टेक अ नी, दैट्स डिफरेंट थिंग। और इसके बारे में फीफा ने काफी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एडवाइजरी डाले हैं, निर्देश दिए हैं कि कोई भी ये करे तो ही माइट बी फेसिंग सैंक्शन। सो इसमें अभी ये सारे जो 6-7 टीम्स ऐसे करने का था कि दे वुड बी वेयरिंग सम बैंड, तो ये बंद हो गए। सो नाउ रियली इट्स टाइम फॉर हैरी केन और वैन डाइक एंड ऑल द अदर पीपल कि वो थोड़ा सा फुटबॉल पे फोकस करे और गेम पे आए थोड़ा। और वही फीफा के प्रेसिडेंट जो है वो शायद
यही बोले हैं। इसके बीच में कार्लोस क्वेरेस मैजिक हैज स्टार्टेड और आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ईरान ने भी एक गोल डाल दिया, सो इट्स ऑल हैपनिंग। अब देखो 5 गोल हो गया अल कुमामा स्टेडियम में। वाओ। मेहदी तरेमी, उन्होंने एक बॉक्स के अंदर में था, लूज बॉल शायद मिल गया था, सो ही वॉन दैट सेकंड बॉल इन द अटैकिंग हाफ एंड उन्होंने अच्छा डाला। अच्छा फिनिश एंड डेफिनेटली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले सर। आई यस थिंक यस, ये इंग्लैंड के लिए एक वेकअप आप कॉल आप आप बोल रहे थे कि रहेगा। कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए, तो हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। सर सर, लेकिन इंग्लैंड के गोल स्कोरर के बारे में और चर्चा करते हैं। बुकायो साको ऑफ कोर्स, साका ऑफ कोर्स, जो उनके साथ हुआ यूरोज में फाइनल्स में व्हेन ही मिस्ड द पेनल्टी, उसके बाद उनको बहुत अब्यूज मिली, बहुत रेसिस्ट अब्यूज मिली। ये इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में चलते रहता है भाई हाँ हाँ अनुभव। ये दिस इज अगेन वेरी पैथेटिक, वेरी सॉरी टू से, वी आर ऑलवेज अगेंस्ट दिस एपार्थाइड, जो वन वैषम्य की जो बातें हैं, जो हाँ एकदम इंडिया तो इसके काफी सख्त स्टैंड है इसकी, बहुत ही हम एकदम बिल्कुल वी स्टैंड वेरी फर्म। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली, आप दुर्भाग्य बोलो कि ये चलते रहते हैं एंड यू कांट हाँ रियली गेट रीड ऑफ दिस। और जब वो इस खिलाड़ी जिसकी कलर व्हाइट ना हो, नॉन व्हाइट प्लेयर्स को, आप साउथ अफ्रीका में भी आप ये चलता है और इंग्लैंड में भी बहुत ही है कि आप कुछ भी गलती करें ना, तो आप उसको काफी कुछ बोलते हो, जो 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 वर्ड्स जो जो सही नहीं है, जो जो ठीक नहीं है, बहुत ही हर्टिंग वर्ड्स है और ऐसा है। तो दिस शुड स्टॉप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर लेकिन जिस तरीके से उस यंगस्टर ने कमबैक की, हार नहीं मानी, he didn't lose मेरा faith in मेरा his मेरा ability. मेरा अर्शदीप को भी इसी इसी हिसाब में याद आ रहा है कि जैसा वो कमबैक किया पाकिस्तान मैच में, 2 विकेट वो डाला है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ सेम थिंग दैट ही आल्सो केम बैक। और हाँ उसको शायद याद होगा कि जब कैच गया एशिया कप ड्रॉप से, हुआ था। हाँ तो एशिया कप से वो वर्ल्ड कप फर्स्ट मैच में बिल्कुल हीरो बना, लेकिन इट्स अगेन बैड लक, इंडिया ट्रॉफी तो नहीं ले पाया। या प्लीज हाँ कंटिन्यू, बोलो। हाँ। सो what does it show about his mentality as a youngster? क्योंकि देखिए सर, रेशियल अब्यूज तो किसी के लिए भी, इवन एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, it would definitely impact that experienced player. But the fact that वो इतने अभी भी, मतलब आई थिंक 17 18 19 20 साल के है, आई थिंक यंगस्टर है, युवा खिलाड़ी है, बट द फैक्ट दैट ही वाज एबल टू कम बैक, ही डिडंट लूज कॉन्फिडेंस, ही डिडंट लूज फेथ इन हिज एबिलिटी, आई थिंक वो बहुत काबिल तारीफ है। नो या ट्रू, दैट शोज द इनर स्ट्रेंथ। यही बहुत ही जरूरी चीज है कि आपको अंदर में क्या है, यू मेड ऑफ स्टील और व्हाट, दैट इज आल्सो रियली दिस रेशियल अब्यूज के बारे में जो हम कहते हैं ना, तो ये काफी काफी चीजें जो है, ये इससे खिलाड़ी को बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी इतना सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, यू आर ओपन, यू आर एक्सपोज्ड। तो भी ये वर्ल्ड कप जाते हैं, यूरोज जाते हैं, इवन क्रिकेटर सब सारे, इनकी इनकी मोबाइल्स वगैरह एंड आईपैड सब छीने जाते हैं, सब सेपरेट जगह पे रखा जाता है। आई नो विराट कोहली पर्सनली, ही सीज नथिंग एब्सोल्युटली, एकदम बिल्कुल उनकी पर्सनल जो लाइफ है और फैमिली, उनके साथ वो बात करते हैं, नथिंग एल्स। तो ये भी फोकस की बात होती है, समझे ना। तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब बुकायो साका को देखो, ही इज गॉट अ बैकग्राउंड फ्रॉम नाइजीरिया एंड अब क्या बताया, अभी वो इज ऑन अ हैट्रिक इन वर्ल्ड कप फाइनल्स, अब वो खेल रहे हैं फाइनल स्टेज पे। तो उनकी जो बुकायो, जो उनके पेरेंट्स से उनको कहा, क्यों कहा, क्योंकि बुकायो के नाइजीरियन लैंग्वेज में, इबाबा लैंग्वेज में उसको कहा जाता है कि ऐड टू हैप्पीनेस, तो उन्होंने शायद इंग्लिश फैंस की हैप्पीनेस में ऐड की। Absolutely. और सर, we talked about how he went from the depths of despair to the heights of ecstasy. ये 498 days में, since being racially abused for missing that penalty at the Euros final, he's gone on to achieve remarkable feats. He became Arsenal's player of the season, Arsenal's top goal scorer last season, and now he's already bagged a brace for himself in his अभी first ever शायद World Cup. अभी शायद ईश्वर की करुणा हो तो हैट्रिक भी हो सकता है, क्योंकि Hat-trick भी हो सकता है. क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश खिलाड़ी वर्ल्ड कप हैट्रिक्स तो है ही नहीं। Absolutely, absolutely. सर, आपके हिसाब से
आपके इंग्लैंड के लिए क्या प्रेडिक्शंस है इस वर्ल्ड कप में? किस स्टेज तक पहुंचेंगे? हाउ क्लोज डू यू थिंक दे विल कम टू लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप, और परहैप्स यू थिंक दे हैव व्हाट इट टेक्स टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप? देखिए, इंग्लैंड की काफी सारे सपोर्टर्स है यहाँ। मैं ऐसा कुछ बोल दूं तो कल पिटाई पड़ेगा, हम रास्ता में जो निकलेंगे ना। बट नहीं नहीं सर, आई एकदम आई सेफ आई आई स्पेस है, आई एकदम डोंट नो, एकदम सेफ स्पेस, पता सो नहीं है बी मुझे। रेडिकली ऑनेस्ट। नहीं, मैं एक चीज बता दूं, इंग्लिश साइड का जो है ना, दे हैव गॉट द ग्रेट डिटर्मिनेशन, सब है इनके, लेकिन कभी कभी ना ये लोग दे बिहेव सो अनप्रेडिक्टेबली। कोई कोई दिन ये लोग ब्रिलियंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ दिन वो बिलो एवरेज भी होते हैं, बिलो पार होते हैं। तो इसीलिए एक शायद अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर है। मान लो अभी जैक ग्रिलिश भी खेल रहे हैं, अभी वो आए हैं, फिल फॉर्डन, दीज आर ऑल ग्रेट टैलेंट्स। कोई दिन इतना ऐसा गोल डाल देगा, आप देखते रह जाओगे, वाओ ये हो सकता है। एंड सम डे दे विल मिस समथिंग, so that is very very bad. This can happen again. A bad news coming कि थोड़ा सा इंजरी इश्यूज है, हैरी मैग्वायर को बाहर। मैं अभी अभी कह रहा था, आपको याद होगा कि स्ट्रिंग का शुरू में आप जब आए थे, द टीम दैट इज गोइंग टू विन इट, वो कौन होगा जो सही वक्त पे पीक करेगा और सबसे कम इंजरी रहेगा उसका। और इसके बीच में कुछ हुआ है, आपको फेस ऐसा ही कुछ बता दे रहा है। सर सुपर सब मार्कस रैशफोर्ड ने बड़ी क्लिनिकली गोल मारा। मैं तो थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ सर, क्योंकि उनको यूनाइटेड के लिए खेलते हुए देखता हूँ, एंड देखिए इस सीजन काफी अच्छे रहे, स्पेशली कंपेयर टू लास्ट सीजन। लेकिन तभी भी एज ए यूनाइटेड फैन कभी कभी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है वाचिंग रैशफोर्ड, बिकॉज ही डज ऑल द हार्ड बिट, बट देन when it comes to putting that easy ball in or perhaps finishing, sometimes he's a bit too rash. ये इंग्लैंड टीम में भी ऐसा हुआ है, अभी अभी यूरो में भी ऐसा हुआ है, एंड द क्लब लेवल I think at some time people say he's a wasted talent. इतना सारा टैलेंट है उनका। मार्कस रैशफोर्ड, if he's got the skill, the power, थोड़ा ड्रिबल करते हैं, पावरफुल ड्रिबल है, शॉट्स अच्छे लेते हैं, लेकिन at times हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा ऑफ फोकस हो जाते हैं, he is off balance. लेकिन अब जो इंग्लैंड जैसा कर रहा है ना, this is going to be one of the biggest margins that they're going to work out on the World Cup. देखना पड़ेगा सर। ये 5-1 जो स्कोर लाइन है, that score line, not the teams of course, that score line makes me a bit reminiscent about when England beat Germany 5-1 in 2001. Yes. आपको, do you remember much of that game? I would watch football then, but not that keenly, especially international football में इतने keenly नहीं देखता था, but उस गेम का significance क्या था? ये एक दिन जो है ना, एक बैड डे इन ऑफिस बोला जाता है। सो दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि यू रियली नथिंग गोज करेक्ट। तो एक शायद ऐसा ही एक दिन था। मैं थोड़ा सा मेरा भी याद है वो दिन। और ऐसे मैचेस कभी कभी है, जैसा मेरे लिए तो सबसे, आई वुड टेल यू, द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ इट इज, मैं जो 2014 फीफा वर्ल्ड कप जब कमेंट्री कर रहा था, तो वो मैच जहाँ पे जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 गोल से हराया, एंड वी वर कमेंटेटिंग और एक दूसरे को तरफ देख रहे थे, भैया क्या हो रहा है, मैं क्या, नो वर्ड्स। आपको वो शायद याद होगा। दैट वाज मच मोर फ्रेश, 8 साल पहले। तो दैट कुड बी वन ऑफ द most important things ki and then people were absolutely surprised. मैं वही ढूंढ रहा था थोड़ा सा, biggest victory margin in World Cup any final games is by 9. हंगेरी ने साउथ कोरिया को 1954 में बीट किया, यूगोस्लाविया ने जायर को बीट किया 9-0, that was 1974, और हंगेरी ने 10-1 बीट किया एल सल्वाडोर को 1982। तो यही 9 गोल मार्जिन है। इंग्लैंड ने 4 गोल मार्जिन डाला है, तो द वे दे आर गोइंग कुड बी, अगर ब्रेक ने अप्लाई करे तो गोल बढ़ सकता है। सर आप रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ मार्कस रैशफोर्ड हैज ब्रोकन सम रिकॉर्ड for taking the least amount of time to score a goal after coming on as a substitute. I wouldn't be surprised, क्योंकि instant impact था। He came in in the 70th minute, scored a goal in the 71st minute. The super sub
जैसे जैसे मैंने Yeah. कहा, and a very very cool finish as well, मतलब very cool finish. Typically जब आप आए हो, you know, especially when you might be very eager, you might end up overdoing it, or you might end up applying too much power. लेकिन जब आए, he was नहीं, cool, calm, ऐसा collected, है, pragmatic. when you come हाँ fresh, you coming हाँ off the bench, तो क्या है, शुरुआत में जो होता है ना, एक एड्रेनल रश होता है कि मैं हाँ क्या करूं, हाँ कुछ दिखाने का है. आई हैवंट बीन प्लेइंग ऑल दिस, पूरा दो हाफ चला गया. मुझको कोच थोड़ा सा बाद में में ला रहे हैं. शुरुआत में हमको चांस नहीं मिला स्टार्टिंग 11 में. कभी के अंदर में एक जलन सा भी होता है, एंड यू आर ओवर ईगर टू प्रूव समथिंग. हम्म तो आज राशफोर्ड के लिए दिन सही था, वक्त सही था, एंड ही मेड अ वेरी गुड फिनिश. लेकिन ये रैशफोर्ड कभी कभी ऐसे रैश मिस करते हैं कि आदमी तंग हो जाते हैं. ही hadn't touched the ball even since the Euro 2020 पेनल्टी मिस फॉर इंग्लैंड. उसके बाद में आज आके पहला टच में गोल डाल दिया. क्या बात. क्या बात है. So all the strange things happening in Qatar. कतार वर्ल्ड कप में तो ऐसा ही सब बोलते हैं कि काफी कुछ चीज होगा, अहम कुछ होगा, कुछ डिफरेंट सा भी होगा, कुछ डिफिकल्ट सा भी होगा. तो ये सब हो रहे हैं. दूसरा दिन में ही आप एक मैच देख चुके हैं, अभी हाफ ए डजन गोल हो गया. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी ग्रेट. एब्सोल्युटली. और व्यूअर्स को यही बस रिमाइंड करना चाहूंगा कि इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब्ड टू अ चैनल, अगर आप इस स्ट्रीम को लाइक नहीं किए, देन किस बात का इंतजार कर रहे हैं. डेफिनेटली कीजिए. इट टेक यू barely a fraction of a second. I think it'll take you much less time than it took Marcus Rashford to score that goal. तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए ताकि you're notified every single time we go live. Just a reminder for people who might be tuning in or people who didn't join us yesterday कि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, यू नो, बिटवीन नाउ अंटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, हम लोग ऐसे ही वॉच अलोंग्स करते रहेंगे. एंड व्हेन वी से वॉच अलोंग्स, इट्स नॉट जस्ट मी एंड पल्लव दा हु आर वाचिंग अलोंग, वी आर वाचिंग अलोंग विथ यू. तो आपकी कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप भी हमारे स्ट्रीम का अहम हिस्सा है. तो डोंट जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, बट पार्टिसिपेट, एंगेज विद अस वाया द कमेंट सेक्शन. हम कमेंट सेक्शन देखते रहते हैं. And especially when Pallab da is in the house, the man, the myth, the legend, then you're definitely in for a treat. ऐसा है कि अभी मैं एक चीज कह दूं अनुभव. अभी सारे जो हमारी दर्शक है और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ना, तो इन्होंने काफी अनुभव है. ये काफी अनुभवी है, और हमारे यहाँ एक अनुभव भी है, और काफी सारे बाकी सब भी हम जुड़ जाएंगे. निशाद जुड़ेंगे, अभी पंकज जुड़ेंगे, यंग बॉय इन द न्यू बॉय इन द ब्लॉक तन्मय जुड़ेंगे. तो ये सारे सब को हम क्या है, हम थोड़ा सा वर्ल्ड कप चल रहे हैं, ये फुटबॉल का फेस्टिवल है. मान लो कि वर्ल्ड के फुटबॉल के सबसे बड़ा फेस्टिवल. यूरो भी बड़ा होता है, कोपा अमेरिका होता है बड़ा टूर्नामेंट, चैंपियंस लीग काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है यूएफए के क्लब लेवल पे. लेकिन फीफा वर्ल्ड कप इज मदर ऑफ ऑल, मैं यही कह दूं. और ये जो एक फुटबॉल की फेस्टिवल है, तो इसमें फेस्टिवल तभी संपूर्ण होता है, तभी उसको पूरा फ्लरिश होता है, जब सब साथ के मिलकर कुछ मजा लें उसकी, और हम सब उसमें जुड़ जाएं और बी बिकम अ पार्ट ऑफ इट. तो डिजिटल टू स्पोर्ट्स की यही कोशिश है. हम वॉच अलोंग कर रहे हैं, लेकिन हम फुटबॉल के बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं, अपना प्रेडिक्शंस ले रहे हैं. और सब सही नहीं होगा, लेकिन हम अपने अपने कमेंट्स जो है, अपने अपने जो सोच जो है, ये हम शेयर कर रहे हैं. तो आप भी हमारे साथ जोड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरे को बताइए कि भैया ये कुछ जरा हटके कुछ हो रहा है, तो आप आ जाओ और यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड जुड़ जाओ. और हम ऐसे सारे इंटरेस्टिंग काफी स्टोरीज, काफी चीज हम बताते रहेंगे. एंड दिस गोज ऑन. महीना भर का एक सोचो कि फेस्टिवल है, घर में पूजा है, आप नवरात्रि करते हैं, डिफरेंट पूजा करते हैं, तो ये फुटबॉल की एक पूजा है. और ये बता दूं, अभी इंडिया में फेयर सेक्स में, यानी कि इन द लेडीज, द फीमेल्स, इन्होंने भी काफी फुटबॉल वो फॉलो करते हैं, और काफी उनकी दिलचस्पी बढ़ रहा है. मैं ये आपको बता दूं. तो दिस इज वन सर्वे हैज बीन डन, और उसमें देखा गया है कि जितने बॉयज मेन,
तो इन्होंने जितने फुटबॉल फॉलो करते हैं अभी, the women are also following, the young girls are also following. So that is great news. और अभी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया इंडिया ने, और जैसा मैंने बताया कि फीफा ने कहा कि मेन के पहले वुमेन वर्ल्ड कप लेवल पे क्वालिफाई करेगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा घोषणा है, मैं ऐसा बोल दूं। और द इंटरेस्ट इज कमिंग अलाइव, दैट्स वेरी गुड। सर आपने कहा कि मेरा नाम अनुभव है, इट मींस एक्सपीरियंस इन हिंदी, लेकिन वो एक मिसनोमर है सर, अनुभवी तो आप है। नहीं नहीं, सभी अनुभवी हैं, जो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमसे हमसे हमारे संग में है ना, तो एवरीबडी इज सब अपने अपने हिसाब से वो अपना अपना नजरिया से, अपने अपने अंदाज से वो गेम को एनालाइज करते हैं। उनका अपना पसंद है, अपने पसंदीदा टीम है, खिलाड़ी है। सो ये कह दूं एक एक बुके है। हर एक किस्म का आप जो गुलदस्ता बनाते हो ना, काफी किस्म का आप फ्लावर्स पिक करते हो, तो आप सारे चुन के एक ब्यूटीफुल आप बोके बनाए हो, और उसमें आप और भी आप जोड़ जाओ तो वो बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। सर देखिए, स्कोर लाइन तो ये क्लियर करती है कि इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है गेम, 5-1 से इंग्लैंड अभी जीत रहा है, 10 मिनट बाकी है। लेकिन ओवरऑल बेस्ड अपॉन व्हाटएवर यू गॉट, आप उनके परफॉर्मेंस का आकलन कैसे करेंगे, इस गेम का आकलन कैसे करेंगे? देखिए, द वे इंग्लैंड स्टार्टेड, दे स्टार्टेड विद 4-5-1, हाँ, तो ऐसा ही उन्होंने स्टार्ट किया। और इसके बीच में जो है अभी वो एकदम, अभी फॉर्मेशन ना कभी रिजिड नहीं होती है, फॉर्मेशन इज वेरी वेरी लूसिड। ऐसा है, गेम का डिमांड जैसा होता है, जैसा जैसा सिचुएशन डिमांड करता है, तो ऐसा आपको फॉर्मेशन आप चेंज करते हो। तो दे केप्ट ऑन चेंजिंग द फॉर्मेशन, अटैक में गए, वो अपना मिडफील्ड से अटैक बिल्ड किया, और टिपिकल जो इंग्लिश फुटबॉल की है ना, वो क्रॉस आती है फ्रॉम द फ्लैंक्स, और उसको आप मीट करते हो जैसा जूड बेलिंगम की हो। सो गोल जो है हेडेड गोल था। उसके बाद में जो है आज इंपॉर्टेंट है, सेट पीस से नहीं, सारे गोल जो है वो अपना ओपन प्ले से किया है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लैंड का एक बड़ा स्ट्रेंथ जो है, ये आप डेविड बेकहम की पीरियड में कहो, कि आप स्टीफन जेरार्ड की पीरियड में कहो, कि फ्रैंक लैम्पर्ट की पीरियड में कहो, वो पसंद करते थे, या गैस्कॉइन की जो फ्री किक्स का इतने माहिर थे, इतना इतना बढ़िया वो फ्री किक देते थे। सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दे आर स्कोरिंग द गोल्स फ्रॉम द ओपन प्ले, दैट शोज द इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम। राइट राइट सर, यश और मैं चर्चा कर रहे थे, एंड आपसे भी ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट तीनों प्लेयर्स जिनका नाम मैं अभी लेने वाला हूं, तीनों रिटायर हो चुके हैं, तभी भी उनकी तुलना की जाती है, दैट्स हाउ ग्रेट दे वर, एंड आई गेस द जूरी स्टिल आउट with regard to who is the best. But आपके हिसाब से पॉल स्कोल्स, फ्रैंक लैम्पार्ड, स्टीवन जेरार्ड, इस तिकड़ी में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन था एंड व्हाई? इट्स वेरी डिफिकल्ट अनुभव। आप इतने जो जो खिलाड़ी के आप जो बताए हैं, according to me, I have met Paul Scholes, is brilliant. मेरा हिसाब से जो वर्क रेट है, इसमें I would just put Paul Scholes little ahead. The way he worked, the way he performed, और उस वक्त पे जो जो स्क्रीन, जो डिफेंस पर मिडफील्ड के बीच में जो बिल्ड किया, और वहां से अटैक जो बिल्ड होती, तो इसमें इसका बहुत ही बाकी दोनों का मैं बिल्कुल छोटा नहीं कर रहा हूँ। दे आर ऑल्सो ग्रेट प्लेयर्स, दे हैव ऑल्सो परफॉर्म वेल इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। बड़े मैचेस में जो अच्छे खेलते हैं, दे आर कॉल्ड द ग्रेट्स। द डिफरेंस बिटवीन अ गुड प्लेयर एंड अ ग्रेट प्लेयर इज, जो बड़े ओकेशन पे, जो बड़े सिचुएशन पे, बड़े मंच पे, फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, इसमें जो खिलाड़ी खेलते हैं अच्छे, तो दे आर कॉल्ड द ग्रेट प्लेयर्स। आप माराडोना को सोचो, आप मेसी को सोचो, आप रोनाल्डो को सोचो, ये सब सारे बड़े ओकेशन में खेल चुके हैं। सो अगेन, to talk about the work rate and everything, you have to put Paul Scholes little forward. आप थोड़ा सा, मेरे हिसाब से, this is absolutely मेरा पर्सनल ओपिनियन। हाँ, आपको क्या ओपिनियन है? आपको क्या राय है, विचार क्या है? बोलो सर। डिफिकल्ट चॉइस, मैं तो थोड़ा बायस्ड हूँ, क्योंकि एक आर्डेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ, तो मेरे दृष्टिकोण से मैं भी पॉल स्कोल्स को ज्यादा रेट करूंगा। ऑल्सो बिकॉज देखिए, मैं पॉल स्कोल्स को ज्यादा देखा हूँ,
as a player, since I've watched United ardently. Frank Lampard, Steven Gerrard, I've seen them play extensively as well, but not as extensively as I've seen Paul Scholes play. So I would probably, even if I had to put my biases aside, मैं तभी भी Paul Scholes को चुनूंगा. So आपकी बात से सहमत, but yeah, marginally, जैसे आपने भी कहा, marginally. Yeah. एक सर, इंग्लैंड स्वेन योरन एरिक्सन की एक मतलब काफी आलोचक है जो उनकी आलोचना करते हैं कि पॉल स्कोल्स अकॉर्डिंग टू देम वाज misutilized on the left hand side playing for England. He should have played in the center, but I'm guessing you had a problem of plenty. किसी मतलब 3 players में से दो ही players slot हो पाते थे in the middle of the field. तो Paul Scholes was the guy who played on the left. तो आपके क्या राय? Do you think Paul Scholes was misutilized playing on the left, as a result of which England wasn't able to extract as much from him as Manchester United was? At that period, England was always an underperforming team. अच्छा. उनको जो टीम था, they should have won every trophy. ये तो होता नहीं है. So I wouldn't say misutilized. Yes, of course, whenever Paul Scholes, I have met Paul Scholes and Ryan Giggs because I done an international tournament where they came, there was a futsal tournament. तो हम उनसे मिल चुके हैं, काफी इसके बारे में चर्चा भी होता है. Great gentlemen, they were so kind enough to give some time to me. So we had little exchanges. थोड़ा सा, I'm a keen student of football, तो कुछ थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा उनसे सीखा. So I wouldn't say they were misutilized. The coaches had their different ways of utilizing, and as I was telling, that England has gone through so much of transformation from the period of Fabio Capello to the Hodgson to whatever, Gareth Southgate, and Sven-Göran Eriksson and whatever. So each one had a different type of style and strategy, and which again, a player has to perform according to the job that the coach gives him. Some player are different types. They can outshine the coach. वो उनसे बढ़ के भी कुछ कर सकता है. Messi, Scaloni would give him all the liberty. भाई आप करो, ठीक है. Fernando Santos would give all the liberty कि भैया तुम जो आ चुके हो, नाराजगी है वहां, तो यहाँ आप उसको सक्सेस में कन्वर्ट करो. वही CR7 को बताएंगे. वो टीटे क्या करेंगे, नेमार को बोलेगा भाई यू आर द लीडर, मुझे ट्रॉफी चाहिए, इसके लिए जो करना है, यू प्ले द सांबा, यू डू व्हाटएवर, शो द मैजिक बट ब्रिंग द कप. तो यही एक बात होता है. इसके बीच में कह दूं कि ये पहले बार हुआ है फीफा वर्ल्ड कप जो यहाँ 5 खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट लिया गया इन एनी वर्ल्ड कप. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड टुडे. तो ये भी कुछ का नई चीजें जो होती है ना, ये टूर्नामेंट चलेगा, आगे बढ़ेगा तो और भी नए कुछ हम देख पाएंगे, और रिकॉर्ड्स आर मेड टू फॉल. तो अभी ये भी एक नया चीज जो हम आज देख पाए. तो ये नहीं मानूंगा कि हाँ वो उनको मिसयूटिलाइज हुआ, कि वो थोड़ा लेफ्ट साइड उनको खिलाया गया. व्हाट कुड हैव हैपेंड ऑन द राइट और द मिडल और समथिंग फ्रंटल रोल, ये आप प्रूफ जब तक ना हो जाए तो इसमें बात करना, चर्चा करना मुझको सही नहीं लगता है. No, not really. And there are some great players who can always adjust in different positions. You just see about Leo Messi. Where did he start? And where he is playing now. कभी-कभी उनकी रोल है false 9. कभी वो नंबर 10 जो रोल है 4-2-3-1 में, जो 3 अटैकिंग बैंड की जो बीच में है, वो ऐसे ही होते हैं. कभी वो राइट में चले जाता है, इन्वर्टेड पोजीशन से वो अटैक करते हैं. कभी वो बाएं से भी आते हैं. यू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, how he started in United and where did he go along? He played in different areas. So Joe, again, as I told you, the great players can adapt and adjust with the other 10. और टीम की जो फॉर्मेशन और सिस्टम जो होती है, उससे वो बहुत ही अडेप्ट कर सकते हैं, तभी ना वो ग्रेट है. So that's the difference between a good and a great. और सर इसी बीच में इंग्लैंड ने 6ठा गोल अपना मारा. जैक ग्रीलिश नाउ ऑन द स्कोर शीट. एक और सब्स्टिट्यूट, एक और सुपर सब आफ्टर मार्कस रैशफोर्ड. सो मान लो कि अभी मेरा खराब लग रहा है हैरी केन के बारे. सिर्फ वही एक गोल नहीं डाला, बाकी सारे जो हैं फ्रंटल प्लेयर्स सब और मिडफील्डर्स अटैकिंग, वो सब गोल डाल दिए. सबके नाम पे एक गोल है. एंड दिस इज गोइंग टू बी समथिंग ग्रेट फॉर इंग्लैंड
अगेन वो बह न जाए, not to get too much of I would say over confident ना हो जाए, बहुत ही अपना ऊपर वो सहम से सही रखे, वो संतुलित रहे और सही से आगे बढ़े। इंग्लैंड की काफी सपोर्टर्स हैं, हम जानते हैं, हमारे टीम में भी काफी है जो इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द क्लब डोमिनेशन एंड क्लब एफिलिएशन। तो इंग्लैंड को अच्छा होना चाहिए और बढ़ना चाहिए आगे। Jack Grealish is one of the greatest talents, I would say. Again, to certain extent, like Marcus Rashford, थोड़ा सा वेस्टेड लगा जो ट्रांसफर हुआ, तो रिकॉर्ड ट्रांसफर था, सब जानते हैं। So, you know, England has got so much of talent, but as I said, on the big stage, at times, they come out unpredictable. यही एक बात है, आप भरोसा रखे हो, जब उनको सक्सेसफुल होना चाहिए तब थोड़ा सा बिलो पार हो जाते हैं। ये एक मुश्किल की बात है। और मार्कस रैशफोर्ड ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। He scored just 49 seconds after coming on, which makes it the third quickest goal scored by a substitute in World Cup history. That's great. Wow. Excellent. ऐसे मैंने कहा कि काफी सारे रिकॉर्ड्स बिल्ड होगा, काफी सारे रिकॉर्ड्स विल फॉल थ्रू along the path as we go along, और हमारी जो वॉच अलोंग शोज में हमारी बात करने की डायरेक्शंस भी काफी चेंज हो गए, और हम और भी जितना आगे बढ़ेंगे टूर्नामेंट के, मान लो कि अभी जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कुड बी अ टेनिस स्कोर, इट इज लुकिंग लाइक दैट नाउ। तो और ना हो, क्योंकि थोड़ा इंजरी टाइम भी तो होगा, और इसमें कितना इंजरी टाइम होगा? 10 मिनट इंजरी 10 टाइम। मिनट। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ रिकॉर्ड। 14 मिनट्स इन द फर्स्ट हाफ, 10 मिनट्स इन द सेकंड हाफ। तो ये कब खत्म होगा भाई? सर आपने अर्ली ऑन इन द स्ट्रीम मेंशन किया कि आप पॉल स्कोल्स, रायन गिग्स के साथ मिल चुके हैं। यू हैड अ कन्वर्सेशन विद देम, यू सेड दैट both shared lots of anecdotes, their personal insights on football with you. और कोई नामचीन खिलाड़ी, managers, former, current, I'm pretty sure you've met many of them with whom you've had memorable encounters, anything that you can remember, any I anecdote, remember story again that you in want the to share? same tournament. I remember in Dubai, I came across the great, one of the arts, my dream person, that free kick man, that skill man, Ronaldinho. But again, language is always very difficult, and मैं यहाँ ओपन फोरम में नहीं बताना चाहता हूँ। पोस्ट इवनिंग गेटिंग देम टू टॉक एंड they become busy in other things. So ऐसा है कि उतना वक्त नहीं दिया, but again I had a sort of a hi hello sort of thing. But I could meet my one of the greatest in the world football of all times. अगर आप 100 greats में तो वो है ही. So I met him, and what skill! I mean, he came at that age playing that five-a-side football. That was a futsal tournament I was doing in Dubai. तो उसमें देखा कि भाई स्किल जैसा है ना, ये यू गेट इट बाय बर्थ। ब्राजीलियंस की जो स्किल है, इट्स बाय बर्थ। ये आप कोपाकाना बीच में जाओ, आप घूमो वहां, अब गली में जाओ, जहां भी जाओ, हमारे यहाँ जैसे गली क्रिकेट में सारे सचिन और रोहित शर्मा निकलते हैं ना, ऐसा आप ब्राजील में जाओ ना, आप सारे पेलेस, नेमार्स और रोनाल्डो और रिवाल्डो को पाओगे। they have so much of skill, and they can show it. So what you can always make a statement, जिसको आप कभी बदलना जरूरी नहीं होगा, कि form is temporary and class is permanent. And even Ronaldinho is one character who could have gone little more longer. It was difficult for बड़ा रोनाल्डो की बात कर रहा हूँ, उनको और थोड़ा बढ़ना मुश्किल था. Even I remember 2002, he was struggling in the finals. इंजरी था, खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उसमें एक बड़ा बहुत चर्चा हुआ, and then finally he came onto it and remember the goals and whatever. Or he was already gained a lot of weight. But Ronaldinho, when he came to Dubai, मेरा याद है, वैसा ही था जैसा वो खेलने का वक्त था. Didn't change much, didn't put on weight, and class is permanent. He can show the skill, he can make the ball talk.
वो इतना स्किल दिखाएगा आपको कि आप जस्ट देखते रह जाओगे, एंड यू थिंक दैट हाउ इट्स ह्यूमनली पॉसिबल, एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, टेक द बॉल फ्रॉम एनीवेयर, वो पीछे से बॉल उठा लेगा, ये सर के ऊपर से सामने लाएगा, वहां से यहाँ ड्रिबल करेगा, एक साथ 3 आदमी 4 आदमी को छकाएगा. सो it's great. I mean, he faced one game in which Paul Scholes was on the other side. He faced one game where Ryan Giggs was on the other side, and Ryan Giggs is one. If you beat him, na, while in dribbling, he gets very angry. You can see it. He gets red. So यही एक बात है. देखो अभी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये टूर्नामेंट में आया, स्टिल नॉट वन टू बी बीटन. दैट्स रैन गिग्स. इनकी जो हार ना मानने की जो मेंटालिटी है, इसको हम सलाम करते हैं. दैट मेक्स अ ग्रेट प्लेयर्स. और सर बड़ा बड़ा रोनाल्डो, आपने you mentioned कि it was 50-50 whether he would play in the final of the 2002 World Cup जो कोरिया जापान में हुआ था. सर आपको ये कहानी अच्छे से मालूम होगी. आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाटएवर लिटिल आई रिमेंबर, लेकिन आप विस्तार में समझा सकते हैं. 1998 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट फ्रांस फाइनल में कुछ हुआ था उनके. आई थिंक देयर वाज फूड पॉइजनिंग या कुछ, which he somehow just ended up experiencing on the day of the final. Conspiracy theory bhi thi ki on the eve of the final apparently the French ended up poisoning his food or did something along those lines. दूसरा स्टोरी भी गया वहाँ, काफी स्टोरी कि they made they partied a lot. तो ये सब होते रहते हैं, and one thing I can tell you, ब्राजीलियन टीम की जो है ना, ये डिफरेंट जनरेशन में डिफरेंट कोच में ही ये चलते रहे हैं कि they never stop their players from enjoying the way. अब ये एक बार बीच में मुझे सिर्फ जर्मन वो इतने उनके क्या कहूँ, उनके नियम की जो है एकदम बिल्कुल बहुत कड़ा है, बहुत टाइट है. उन्होंने भी कुछ अलाउ किया फ्रेंड्स और द वाइफ्स एंड द गर्लफ्रेंड्स, उनको संग में रहने के लिए वर्ल्ड कप के लिए. एक ही बार ऐसा हुआ था. But Brazilians are always open. You don't put any iron curtain. कुछ ऐसा ये मना है वो नहीं है, नाइट लाइफ नहीं चलेगा, ये सब बोलता नहीं है. उनको कहने का चीज एक ही है, आप जाओ फील्ड में अपना एबिलिटी जो है उससे परफॉर्म करो. लेकिन ये है हर एक टीम का जो सपोर्ट स्टाफ होता है, इसको सख्त नजर रखना चाहिए कि भैया ये क्या कर रहा है. क्या हम जासूसी का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में भी रखना चाहिए ना. पीपल लाइक रोमारियो, बेबेटो, बड़ा रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, रिवाल्डो, ये इतने बड़े हस्ती है ना, इनको ऐसा ही अंकुश लगाना कुछ डिफिकल्ट है. ये आप नहीं कर सकते हो. अब आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं कर सकते. ही इज अ वेरी आई वुड से, टूर्नामेंट जब चलता है ही इज अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन. ये आप जान जाओ. लियो मेसी वुड नेवर whatever do something which is not good. He's always been disciplined, always been so focused, and a great a team man. लेकिन वो ऐसा है, ये this has not been proved, and unless you can prove anything you can't say anything. इसको एक ऐसा टैग लगाना ये सही नहीं है. there are different stories running around, but कौन सही है कौन ठीक नहीं है, आप अगर स्पॉट में ना हो और इंसिडेंट में ना हो तो ये आप नहीं बोल सकते हो. यू कांट. सर आपने काफी अप्रोप्रिएटली वर्ल्ड कप को एक फेस्टिवल कहा, और आप बहुत सारे फेस्टिवल्स को एक्सपीरियंस किए. यू विटनेस्ड सो मेनी ऑफ देम. व्हेन इट कम्स टू योर वर्ल्ड कप व्यूइंग हिस्ट्री, आपके सम ऑफ योर फेवरेट वर्ल्ड कप्स, ऑफ कोर्स इट्स हार्ड टू पिक क्योंकि हर वर्ल्ड कप डिफरेंट रीजंस के लिए स्पेशल होता है, बट सम ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल वर्ल्ड कप्स वाचिंग एज अ फैन or commentating as a commentator. Watching as a fan, it was of course the Maradona's World Cup, absolutely, for sure. और अगर आप कहे कि while I was performing and working, it was again the last World Cup. I loved the way clinically France went on to win the whole thing, and the emergence of Kylian Mbappe and the whole team, and Didier Deschamps holding on the whole side. So I mean, it was a great victory, a great team effort, I would say, and everybody performed to their best of ability, because the greater teams, so जिसको
फेवरेट्स माना जाता था, दे वर एलिमिनेटेड. सो अंत में जो जीता वही सिकंदर. So that was, while performing for a World Cup, I think 2018, the French victory was a great thing for me. Yeah, of course. But again, as a fan and all time, Maradona's World Cup will be the World Cup that people would remember, और आखिरी दिन तक जिंदगी के वो याद रखेंगे, the way he just conquered the world. और सर पेले वर्सेस मैराडोना, आपकी क्या राय इस भैया ये जो डिबेट ये अंतहीन है. हमारा तो अभी 10 मिनट का एडेड टाइम भी खत्म हो चुका. सो we would be winding up gradually. ये भैया चलते रहेगा. There are different generations, whatever. Pele has got great respect for Maradona. Maradona was a maverick. He never sort of initially respected Pele. But again, with the age at the later part, yes, he said, yes, this is a great man and whatever. मिल भी चुके हैं. तो again, I mean, in terms of winning the trophy, अगर वो एक yardstick हो, तो who can be greater than Pele? Of course, and the number of goals scored. But as far as the skill, as far as having अपना हृदय पे किसी को अगर जगह हो, you ask anybody, you ask 10%, 8 कहेंगे कि भाई यहाँ पे मेरा जो है वो एक पागलपंती है, वो एक पागल सा आदमी है जो इस वर्ल्ड कप में नहीं है. पहला बार ऐसा हुआ. इस डिएगो अर्मांडो मैराडोना. सर ये गेम काफी इट्स मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है. इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि काफी इवेंटफुल गेम रहा है अब तक. काफी गोल्स हो गए एंड देन लास्ट मिनट पेनल्टी अवॉर्डेड टू ईरान वार के थ्रू. तो हो सकता है अभी 6-2 पे एंड. हाँ, इंग्लैंड खिलाड़ी लोग ने भी थोड़ा प्रोटेस्ट भी शायद करेंगे, जैसा पेनल्टी मिलने से होता है. भी देखना पड़ेगा जो वेदर इट्स सेव्ड और नॉट. एक गोल ने उन्होंने डाला है, तो 2 डालेगा तो कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है उसको ऑक्सीजन में मिलेगा. दूसरा बाकी दोनों मैचों के लिए. आपको क्या लगता है सर, अगर ये देखते पेनल्टी का अंजाम क्या होता है, लेकिन अटैकिंग वाइज तो इंग्लैंड ऑफ कोर्स 6 goals can't complain, couldn't have asked for more. लेकिन डिफेंसिवली assuming कि they end up conceding a second goal, आपको क्या लगता है वो थोड़े disappointed होंगे कि they've let in 2 goals, they've conceded 2, उनकी डिफेंस पता नहीं है. देखो ना, जॉर्डन पिकफोर्ड ने शायद कुछ मैजिक कर दे. हमें लगता है प्रेशर ईरान के ऊपर है. तो 6-2 सर, 6-2 ईरान ने गोल मारा है, तो that is great, perfect. But this should have been this is always a mind game. जब पेनल्टीज जो लेने को जो होता है ना वक्त, तो उसमें सारे कहते हैं कि भाई गोलकीपर के ऊपर बहुत प्रेशर है, दबाव है. But it's always the pressure on the person who's taking the kick. People like Zico, the greats, all-time greats, people like Messi, like Ronaldo, everybody has missed penalties जिंदगी में. तो ये होते रहता है. Goalkeeper, I would say, is on the receiving end. उनका कुछ हारने का नहीं है. If you can make a save, he will become a hero. डोनाल्डो को आप याद करो, Euro finals, right? 2021, absolutely, right? Absolutely. तो अभी इस बात में जो कहने का है, who's taking, and I have seen a lot of goalkeepers who sort of plays mind game on the शूटर. पेनल्टी जो ले रहे हैं ना, उसको ऐसा छकाते हैं, कभी ऐसा कुछ ऐसा. बट देयर आर सम पीपल हु आर ग्रेट पेनल्टी टेकर्स. सो दैट इज इट. इंग्लैंड के लिए ये काफी बड़ा विक्ट्री होगा. 6-2 गुड स्टार्ट. बट आई थिंक ईरान के लिए भी थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला है. सो द फुल टाइम स्कोर इन फेवर ऑफ इंग्लैंड एट अल तुमामा स्टेडियम, कतार, इन ग्रुप ए मैच इज इन फेवर ऑफ इंग्लैंड. 3 लायंस. 6-2 की एक बड़ी जीत उन्होंने हासिल की. एंड अनुभव क्या लगता है, अभी ग्रुप ए इंटरेस्टिंग हो जाएगा और बाकी जो टीम जो मीट कर रहे हैं आज, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग. देखना पड़ेगा हु टॉप्स द ग्रुप. इंग्लैंड इज ऑफ कोर्स कमिंग आउट फेवरेट. हाँ इंग्लैंड से डेफिनेटली एक बड़ा स्टेटमेंट से मिला है. 6-2 वेरी कन्विंसिंग स्कोर लाइन. मे बी दे माइट बी अ टैड डिसअपॉइंटेड कि वो लोग 2 goals लीक किए, बट अभी भी विनिंग बाय 4 goal मार्जिन, स्कोरिंग 6 goals.
those goals coming from so many different goal scorers. I think it's been a solid start. लेकिन जैसे आपने कहा throughout the stream, you reminded us a couple of times कि देखो, it's important that you peak at the right time. You don't want to peak too early in the tournament and then fizzle out as the tournament progresses. तो इंग्लैंड यही आशा करेगी कि यही फॉर्म को बरकरार रखे, एंड ये नहीं कि you know, when it's time to actually deliver the goods under pressure, they fizzle out. But मुझे तो मजा आया सर, बहुत अच्छा मैच था. I think the World Cup so far, it's still very early days, 2 ही मैच खेले गए हैं, but it's off to a solid start. आपके साथ commentary में मजा आया, but we aren't finishing right now. Senegal versus Netherlands, उस मैच के बारे में भी चर्चा करेंगे. We'll start the watch along. फिर USA versus Wales, जो आज का तीसरा मैच है, वो भी कवर कर रहे हैं, जो 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट होगा. द मैच, बट ऑफ कोर्स द वॉच अलोंग स्ट्रीम उसके पहले ही स्टार्ट हो जाएगी. So again, thank you everybody जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किए थे, और लगे रहिए. मुन्ना भाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगे रहिए, and we would be trying to deliver all the best, and you know, it should be a great thing, because the World Cup is now really picking up, so that is also a great thing. So let also Yash come in. I think we are waiting for him. So points table थोड़ा बता दीजिए अनुभव. हाँ, तो इंग्लैंड इस जीत के बाद 6-2, they've played 1-1, 3 points in the bag for England. USA versus Wales, वो 12:30 बजे, जैसे मैंने कहा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो मैच आगाज होगा. Wales versus Iran, November 25th from this group. Then England versus USA, November 26th, and then 30th November को 2 matches, Wales versus England or Iran versus USA. Yeah, that will be same time, because that's a FIFA stipulate कि एक संग में हो, ताकि कोई कुछ दूसरा किस्म का बात ना आ जाए सामने उभर के. Absolutely. And एक और friendly reminder कि all of these games, इनकी watch along live streams हम हमारे Digital2 Sports networks पे दिखाएंगे. तो please join us as you have done so far. Questions post करते रहिए, comments करते रहिए. If you haven't subscribe to our channel, and notification की घंटी, जो bell icon है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि you're notified as soon as we go live, and you don't necessarily have to keep a track of all of this in your diary or your Google calendar. Yeah, absolutely. That is a great reminder that हम तो गपशप करते ही रहेंगे. और कुछ मैच स्टैट्स भी आज, जैसा इंग्लैंड ने बिल्कुल हावी हुआ ईरान के ऊपर. मुझे लगा था कुछ एशियन चैलेंज आएगा, क्योंकि अभी ये पहला बार वेस्ट एशिया में हो रहा है, थोड़ा पश्चिम एशिया में. पूर्वी एशिया में तो पहले हुआ था एक बार, जॉइंटली कोरिया एंड जापान, लेकिन ये इस मुल्क में तो पहली बार आया है. एंड ऑल गुड थिंग्स टू हैपन, इसी का ही हम गुंजाइश है. हम सोचते हैं कि ऐसा ही घटेगा, और काफी सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ने का है. देखना है कोई नया चैंपियन मिले कि नहीं. अभी इतने सारे टीम्स है जो वर्ल्ड कप कभी जीते भी नहीं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात है. आप सोचो, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप तो ब्राजील ने जीत चुका है 5 बार. आप जर्मनी, इटली 2 बार. देखो, इटली है ही नहीं. दैट्स इम्पोर्टेंट. मैच स्टैट्स थोड़ा बता दीजिए अनुभव. हाँ, तो इंग्लैंड डोमिनेटिंग द मैच स्टैट्स कॉलम. 13 शॉट टोटल में, 7 ऑन टारगेट वर्सेस ईरान के 8 शॉट in total, and 3 of them on target. Possession में भी England very dominant, 78% possession compared to Iran की 22%. England completing a mammoth 796 passes versus Iran's 214. उनकी pass accuracy भी बहुत अच्छी थी, 90% passes complete versus 66% from Iran side. Iran के लिए 2 yellow cards, England no yellow cards, 0 red cards in the game. और in the corners department, England with 8 corners versus none for Iran. And of course, the most important stat that you see there, England winning this match by 6-2. ना आप ऐसे बोल रहे थे कि अभी एंट्री कैसे हुआ, थोड़ा सा मैं ये भी स्टैट दे दूं आपको कि इंग्लैंड जो अटैक किए हैं ईरान के ऊपर, तो उसके लेफ्ट चैनल से 11 मूव्स हुए हैं, और लेफ्ट इनसाइड चैनल से 5 मूव, सेंट्रल चैनल से अर्थात बीच से गया 2 मूव, राइट इनसाइड चैनल से 3,
और 11 राइट चैनल से, यानी कि बोथ फ्लैंक्स आपकी 2 इंजन से उड़ान बहुत ही स्मूथ होती है। तो ऐसा ही हुआ, जैसा एक अच्छा जेट एयरक्राफ्ट ने करता है ऐसा ही। सो 11 फ्रॉम द फुल फाइनल लेफ्ट चैनल, 11 फ्रॉम द राइट चैनल। सो एकदम दोनों विंग्स पे ऊपर भर करके अभी गैरेथ साउथगेट, शायद आज रात को एक अच्छा डिनर हो सकता है। और हैरी केन इज द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर टू असिस्ट 2 goals इन अ वर्ल्ड कप गेम सिंस डेविड बेकहैम। सो ये भी काफी सारे इंपॉर्टेंट अहम मुद्दे हैं। बट आई फील बैड फॉर दिस मैन, द इंग्लिश लीडर हैरी केन। स्कोर शीट पे उनका नाम आज 6 गोल के गोल फेस्ट में नहीं रहा। और सर बहुत बहुत सेल्फलेस प्लेयर है, बट आई एम गेसिंग being selfish as a striker is probably a virtue and not a vice. Yeah, of course. Brilliant. तो उसी नोट पे इस स्ट्रीम को समाप्त करेंगे. Thank you so much for joining us throughout the course of the stream. मुझे तो बहुत मजा आया पल्लव सर के साथ, as well as with Yash. हम लोग बातें जारी रखेंगे इन फॉर द नेक्स्ट मैच जो सेनेगल वर्सेस नेदरलैंड्स के बीच में खेला जाएगा. एंड we'll meet in approximately 40 minutes close to the start of kick off, जो 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. तो ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट गुड बाय नहीं कहूंगा, सी यू सून कहूंगा. Thank you. See you again.